So for the new students, especially Mannat and Manju, if you look at it, this is version 4. So this is our fourth class that we're doing of the SBL pre-scene for the March 2026 attempt. And in all probabilities, tomorrow will be the last class wherein we will cover the entire case study analysis. Yeah, so just for your reference, everyone, the Word document that I'm showing all of you in terms of analysis is being sent on the WhatsApp communities also. I hope everyone was able to download up to version 3. Okay, so today's document is version 4. So this is like day 4 of Merced. Yeah. Okay, chaliye. Before I get started with my analysis, I just want to quickly check with all of you. If you have any questions, any doubts, Manat, you might have joined the community also late. That is what I'm guessing. So maybe I'll ask the team to send out all versions of the case study analysis tomorrow once we complete it. In fact, I will be creating a master document which will have all 4 days, 5 days of analysis in one document, and that will be sent out post the class tomorrow on the WhatsApp community. Yeah. Okay. So with that, most welcome. So with that, let's just quickly see if there are any initial questions you have based on the analysis that you've done, based on the reading that you've tried, based on some of the answers that you may have started writing. Any initial thoughts? Anyone? Vanshika, Sia, Arman, Keshav. Okay, Shruti, you have a question, so you can obviously put it on the chat. You can unmute yourself if you want to speak up. I will be happy to take those questions. Okay, and if you still are in the process of typing questions or probably as you want to ask as you move along, feel free. So I will be with you for about 2 hours today, so we can maybe use that time. Okay, Riddhi have the first question which says how to apply integrated reporting to the case. So Riddhi, one part of the integrated reporting I covered in the previous class. I think you were not there in that class. One part I will be covering today. So hopefully that will take care of the IR related questions. I'm not able to write the answers, basically not able to frame. So Manas, I think maybe you are jumping the step. The first step is you should be able to thoroughly analyze the case study. That's very important. Yeah. Now, once you analyze the case study is when you will get clarity. Once you get clarity, you will be able to structure now your answers. And to your point, if you look at the last three versions of the document, yeah, whatever topics I have covered, I have also given structure in terms of how you could attempt to write an answer. What should paragraph one contain? What should paragraph two contain? All of those elements have also been laid out in the respective answers. For all the topics I will be discussing today, I will show that element in the class today also and probably in the class tomorrow also. So hopefully that should get you started. Yeah. Okay. So nothing, Ayushi says nothing specifically mentioned about editors, design staff, advertising, editor in chief. IT, is it safe to say that they work in a decentralized manner? Each division has their own staff. So Ayushi, if you look at the case study, they mention about two, three functions which are centralized. Like for example, marketing, finance, those are centralized. That's given in the case study. For everything else, they've got divisions. And divisions, again, see, we'll have to start applying some logics to why, how some things will work. Now they've got 8 divisions. Yeah. 8 divisions would mean that these are different lines of business magazines. One could be the sports division, the other could be the leisure division. Now, if you think about it, the sports division content writers will have a very different skill set. They need to understand sports. Yeah. Similarly, the leisure content writers will have to understand leisure. Now, there will be a possibility some people can write all content, but generally, how it works is if there is a sports writer, he will be part of the sports division. If there is a leisure writer, they will be part of the leisure division. Yeah. IT, again, centralized, decentralized does not matter a lot here because Merce does not have a lot of IT presence, anyways. They have very traditional tools, and I am assuming that they would be managed from the head office because they, given the kind of IT they are using, they would not have decentralized it. So from a content creator, definitely decentralization. From an IT perspective, it looks more like centralization. That is how I would infer. Okay. So Ayushi, hope that gives you some clarity in terms of how the division staff is set up. Okay.
Shruti says in Harman's process matrix, printing is suggested to be outsourced. Why is it low strategic important? Because there is no such decision to shut it off or reduce production. So, Shruti, the purpose of the Harman's process strategy matrix is to identify how can we make the processes better. Now, printing is a easy task because what needs to be printed is being written by the content creator. Yeah. So creating the content cannot be creating the content is partially outsourced because they have their in-house writers and they are freelancers. Now, once the content is created, generally the look and feel of the magazine, which page will have what content, what size, where will the ads go, all of that is already laid out with the printer. Yeah, now currently Mercy is doing everything in-house, which will take a lot of their bandwidth. And I'm also assuming that when companies do some of these processes on their own, they are more cost, they're less cost effective, which means they are consuming more cost. Yeah, so printing being a standardized process, the setup is also standardized, and other companies, other competitors of Mercy are anyways doing it. That should also give us a hint that this is outsourceable. Yeah, and that is why we're coming up with the thought that if Mercy was to prioritize which process should be done in-house versus outsourced, printing is something that could be easily given outsource. Yeah, so that's the logic, which is what we're trying to use. Now, yes, you're right. There is nothing relating to shutting down. That is again an assumption that we've used, and we've used it as part of our SWOT analysis. And they have nowhere told us to reduce production. But yes, we picked up a situation wherein we said that currently they have 300 magazines, 8 different divisions, and that's like too much to manage. And another element that I mentioned in the class was that when you have such a big product portfolio of 300 magazines, there will be a lot of magazines which will be loss making, both in terms of revenue, in terms of cost, in terms of volume. And it is not practically possible for companies like Mercer to run so many magazines. So that is why they should probably think of rationalizing some of their product portfolio also. Okay, so those are certain thoughts relating to Harman's. Okay, then basic editing should also be given minimal effort. Yeah, yeah. So you can see, like I said, my Harman's process strategy matrix is just to get you started. Yeah, some things you may want to build on it. So if you feel some bits of the content in terms of editing could be even automated using AI, you don't even have to outsource it. Yeah, like for example, you've written a content. Can I use an AI tool to improve the language, reduce the grammar mistakes? Yeah, make some more basic edits, bring in some graphics to it, bringing some more visuality to the content that can even be automated using AI tools. You don't even have to outsource. But if you feel some bit can be outsourced, do that. Okay, so one thing that all of you need to keep in mind is your way of thinking versus my way of thinking will be very different. I, as a head of Merce, may want to do the content myself. For example, you may want to do it through AI. Yeah, and probably Riddhi may want to do it using outsourcing model. So you need to be clear with what you want to do. Second element, which is most important that I keep telling all of you is why do you want to do it? I will have my logic why I want to use AI. You should have your logic why you don't want to use AI. Now, if the logic makes sense, if the logic is reasonable, point is correct. Otherwise, the point and the thought needs to be changed. Okay. So, Shruti, I hope that answers your question in terms of Harman's process strategy matrix. Good to see that you guys are trying to develop some of these thoughts and bring them up as question. Okay. Vanshika says 5 ethical threats का question. नहीं नहीं, so Vanshika, ethical threats, ethical dilemma, these are not topics that are predominantly asked in SBL. Way too straightforward, way too theoretical. This is a business paper, so they will focus more on the business problems. In fact, जितने भी आप पास पेपर्स देखेंगे उसमें कहीं पे भी एथिकल थ्रेट्स, एथिकल डायलेमा, कोड ऑफ एथिक्स के क्वेश्चंस नहीं आते. एथिक्स का एक तो अलग से एग्जाम होता है, दैट इज देयर. एंड जो आपके स्किल लेवल है, स्किल लेवल में ऑडिट इज अ सब्जेक्ट. सिमिलरली प्रोफेशनल लेवल में ऑडिट इज अ सब्जेक्ट which will focus on ethics. SBL is not kind of put in place to focus on ethics. ठीक है, I hope that answers your question. Okay, so whatever question we had upfront, I've answered those. Hopefully that gives clarity to others as well. Okay, are we clear so far? How to think, why the reasoning is important, and that is how you will be able to create the structure of the answer. Clear है सबको?
Riddhi says resistance in culture. Culture, Riddhi, we will cover tomorrow. I am not covering culture today because I will cover that as part of change management. Like I said, I will just put that on the chat. One question that had come in as part of culture, a basic question was in a paper, past paper called Courgettes. So if all of you remember, when I started the SBL revisionary classes, the pre-scene discussion classes, I mentioned about three past papers. One was Courgettes, which all of you should try. Then there is a paper called Biago. I'll just re-put that name on the chat. So this is one past paper that you should definitely try or at least read. And third paper is Smartware, which is a must. So I will briefly discuss a few questions from Smartware in the session today so that you get some more clarity in terms of what was the intent of the question, how do we pick up information from the exhibit, and then just take it forward from there. See, the best case scenario for everyone will be, and this is my recommendation, you should create time to write answers of Courgettes, Biago and Smartware. क्योंकि जब आप पढ़ते हो आपको लगेगा सब कुछ आता है, दिस इज इजी, दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई विल बी एबल टू डू इट. ठीक है ना. बट वेन यू एक्चुअली हैव टू रीड द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड इट एंड कन्वर्ट इट इनटू आंसर यूजिंग योर थॉट्स, दैट्स वेयर द चैलेंज इज. तो अगर आप कोई और पेपर करो ना करो, प्रैक्टिस कोरजेट्स, बियागो एंड स्मार्टवेयर जरूर करना. ठीक है. अगेन दिस इज अ रिकमेंडेशन, फील फ्री टू रिजेक्ट इट बेस्ड ऑन हाउ यू आर प्लानिंग टू स्टडी एंड व्हाट इज योर शेड्यूल लुकिंग लाइक. ठीक है. चलिए वर्जन 4 ऑफ द डॉक्यूमेंट में चलते हैं. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई वांटेड टू कवर टुडे इज द पेस्टल एनालिसिस. Yeah, and Mannat, focus on this because this is where I'm also giving you the structure on how to write an answer. Like I said, for all previous questions that I've discussed, I've given some sample answers also. Yeah, so let's say the answer needs to have 5 points. I have not given you all five because that will be like too much of a spoon feed. But I've given you at least one or two elements of the answer for every question so that you can read that, make sense out of it, and then cover the remaining points. Okay. Okay. Now the second thing I mentioned is about pestle. Now this is one case study, one classic case study, जहाँ पे ना pestle related information बहुत कम है. तो you actually have to dig deep to get any information for pestle. ठीक है. तो मैंने कुछ कुछ चीजें यहाँ पे ट्राई करी है. जस्ट गिवन आई विल बी सेंडिंग आउट दिस डॉक्यूमेंट ऑल्सो, बट पहले थोड़ा सा एनालिसिस को समझ लेते हैं. नाउ लेट्स से पॉलिटिकल. पॉलिटिकल मींस एवरीथिंग रिलेटिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री. विच कंट्री? डारलैंड. अब यहाँ पे अगर आप केस स्टडी पढ़ोगे आपके पास कोई पॉलिटिकल ऐसा नेगेटिव एलिमेंट नहीं है. ये भी कह सकते हो कि इंफॉर्मेशन ही नहीं है. ठीक है. बट जब इंफॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है, तो यू कैन अज्यूम सम बिट ऑफ इट टू बी पॉजिटिव. दैट इज वन वन केविएट. आई विल शो यू हाउ आई हैव डन दैट. एंड सेकेंड इज, मैंने कुछ कुछ इंफॉर्मेशन जो केस स्टडी में अदरवाइज दे रखी है फ्रॉम एन इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव, उसको यूज करके सम पार्ट्स ऑफ पेस्टल को क्रिएट किया. सो पेस्टल इन दिस केस स्टडी इज लाइक अ पजल. मेजॉरिटी ऑफ द पीसेस ऑफ द पजल आर मिसिंग. ठीक है. सो लेट्स से पॉलिटिकल. ना पॉलिटिकल आई से इट इज फेवरेबल. अनफेवरेबल कुछ है नहीं. I've done a safe assumption कि favorable है ना. What do I say when I say favorability? Political conditions in Mersey look favorable. बस. Now when I say favorable, it means stable government है and stable government policies है. That's it. मैं बहुत ज़्यादा nitty gritties में जा नहीं सकता because there is very limited information. The other information that I've used here is the magazine industry in Mersey is also stable. It is growing at a steady pace. $8,000 million की market है. तो साइज भी अच्छा है, नंबर ऑफ कंपेटिटर्स भी अच्छे हैं, सबका रेवेन्यू भी ग्रो कर रहा है. चाहे वो धीरे ग्रो करे, तेज ग्रो करे, ग्रो तो कर ही रहा है. दैट इज व्हाई आई से दैट द मैगजीन इंडस्ट्री इन मर्से इज स्टेबल एंड ग्रोइंग एट अ स्टेडी पेस. नाउ व्हाई डू यू थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर पॉलिटिकल? क्योंकि जो भी इंडस्ट्री किसी कंट्री में फंक्शन करती है, वो ग्रो करे या नहीं ग्रो करे, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है. बिकॉज हु क्रिएट्स द पॉलिसीज फॉर एनी इंडस्ट्री? द गवर्नमेंट. तो आई सेड पॉलिटिकल कंडीशंस इन मर्से लुक फेवरेबल. The magazine industry in Mercy is stable and growing at a steady pace. Any economic recession, अब recession है या नहीं पता नहीं है, मैं अज्यूम भी नहीं कर सकता. बट अगर आप रिस्क वाला सेक्शन देखेंगे मर्से की केस स्टडी में, उसमें लिखा है देयर कुड बी एन इकोनॉमिक रिसेशन. तो मैंने उस पॉइंट को यूज करके क्या लिखा? एनी इकोनॉमिक रिसेशन मे लीड टू गवर्नमेंट चेंजिंग देयर पॉलिसीज रिलेटिंग टू इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग द मैगजीन पब्लिशिंग इंडस्ट्री. सो आई एम नॉट मेकिंग अ पॉइंट ऑफ व्यू. I am not making a judgment. I'm just saying if this happens, this is how it will impact.
ठीक है, सो दिस इज हाउ, एंड आई क्रिएटेड दिस जस्ट फॉर योर रेफरेंस सो दैट यू शुड नॉट फील आउट ऑफ प्लेस कि इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर एग्जाम में आए तो मैं पेस्टल को कैसे क्रिएट करूंगा। आई एम जस्ट गिविंग आउट सम हिंट्स कि ऐसे आप आंसर को स्ट्रक्चर कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर एवरीवन प्लीज कीप इन माइंड पॉलिटिकल फैक्ट, पेस्टल में जब आप कोई भी फैक्टर एनालाइज करते हो, फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द फैक्टर हैज टू टॉक अबाउट द फैक्टर इटसेल्फ। तो मेरा पैराग्राफ 1 पॉलिटिकल फैक्टर के बारे में बात कर रहा है फ्रॉम अ डारलैंड पर्सपेक्टिव। अब आपको एग्जाम में पैराग्राफ 1 नहीं लिखना, यू कैन जस्ट स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद पैराग्राफ 1। यहाँ पे मैंने आपको 1 2 3 इसलिए दिया है सो दैट यू कैन ब्रेक योर आंसर इनटू 3 पैराग्राफ फॉर एवरी फैक्टर। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ पैराग्राफ नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 2 हैज टू बी वेदर द फैक्टर इज फेवरेबल और नॉट, जस्ट रिटन फेवरेबल। आपको इसको सेंटेंस में लिखना है, मैंने सिर्फ आपको कंक्लूजन दे दिया फेवरेबल। अब क्योंकि ये फैक्टर फेवरेबल है, पैराग्राफ नंबर 3 में क्या आना चाहिए, हाउ विल इट इम्पैक्ट मर्से। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, द मैगजीन इंडस्ट्री इज पॉइज्ड एट अप्रोक्सीमेटली $8,000 million विद 5 companies with maximum market share in terms of revenue. Mersey is also amongst the top 5 magazine publishers. That's about it. तो पहला फैक्टर है रिलेटिंग टू पॉलिटिकल विच इज गवर्नमेंट, पैराग्राफ 1 में फैक्टर की बात करेंगे, पैराग्राफ 2 में फेवरेबल अनफेवरेबल, पैराग्राफ 3 इज ऑलवेज कि उस फैक्टर का मर्से पे, आपकी कंपनी वाली केस स्टडी पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है। इज एवरीवन क्लियर ऑन दिस? सो दिस इज हाउ यू विल स्ट्रक्चर एन आंसर फॉर पेस्टल। तो हर फैक्टर की हेडिंग, उसके नीचे यू विल हैव 3 सब पैराग्राफ, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3। कोई भी पैराग्राफ आपका 4 to 5 लाइन से एक्सीड नहीं करना चाहिए, बिकॉज यू शुड कीप इन माइंड कि इन्विजिलेटर इससे बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं पढ़ेंगे, दे विल नॉट हैव द टाइम टू रीड सच लेंदी पैराग्राफ्स। ठीक है, समझ में आ गया कैसे क्रिएट करना है? ऑनलाइन स्टूडेंट आर वी ऑल क्लियर? क्विक रिस्पॉन्सेज ऑन द चैट। ओके, श्रुति, अर्नव, क्रिश, महक, फरहान, वंशिका, अरमान, यश, ओके, चलिए सबको समझ में आ गया, ग्रेट। एंड अगेन यू शुड कंटिन्यू टू बिल्ड ऑन दिस। सिमिलरली देखो मैंने आपको सोशल फैक्टर भी करके दिया है ना, हाउ एम आई क्रिएटिंग इट, अगेन दिस इज वेयर, जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बोला था, आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन ब्लैक एंड व्हाइट है, बट देर इज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज इन द ग्रे, जो आपको ना कुरेद कुरेद के ढूंढ के निकालनी पड़ेगी। दैट इज वाई वो आपको 10 दिन पहले केस स्टडी भेजते हैं। अब सोशल फैक्टर्स को देखते हैं वापस, वही पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 1 किसके बारे में है, सोशल फैक्टर। तो देखो मैंने कैसे लिखा है, रीडर्स प्रेफरेंसेस, क्योंकि सोशल फैक्टर मींस रिलेटिंग टू पीपल ऑफ द कंट्री। ठीक है, सो रीडर प्रेफरेंसेस आर शिफ्टिंग फ्रॉम प्रिंट मैगजीन्स टू डिजिटल कंटेंट, ये तो आपको केस स्टडी में गिवन है। अब इसको मैंने कैसे यूज किया इंटरप्रेट करने के लिए, दिस ऑल्सो इंडिकेट्स, अब कभी भी ना देखो आप, मैगजीन आपको खरीदनी पड़े वर्सेस मैगजीन आपको डिजिटली फ्री में मिले या कम पैसों में मिले, व्हाट डज इट टेल यू, इट टेल्स यू समथिंग अबाउट द बिहेवियर ऑफ द कस्टमर। यहाँ पे क्या पता चला, दिस इंडिकेट्स दैट द कस्टमर वुड बी विलिंग टू स्पेंड लेस ऑन प्रिंटेड मैगजीन्स गोइंग फॉरवर्ड। तो लोगों का बिहेवियर टुवर्ड्स प्रिंटेड मैगजीन चेंज हो रहा है, अब वो नहीं खरीद रहे, विच मीन्स कि उनको इस पे पैसा नहीं लगाना। दिस इज, आगे देखो, दिस इज फर्दर लाइकली टू बी इम्पैक्टेड विद इंक्रीजिंग अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री डिजिटल कंटेंट। एक तो मैं प्रिंट खरीदना नहीं चाह रहा, मैं पैसा नहीं लगाना चाह रहा, दूसरा मुझे लोग फ्री में कंटेंट देंगे तो मैं क्यों पैसा लगाऊंगा। दिस इज हाउ आई एनालाइज वेरी ब्रीफली द सोशल फैक्टर। अब इनको अगर आप पढ़ोगे तो सोशल फैक्टर कम्स आउट टू बी अनफेवरेबल। ये अनफेवरेबिलिटी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, योर कंपनी मर्से, मर्से के लिए फैक्टर अनफेवरेबल है। पैराग्राफ 3, revenue of Mercer from print magazine has started to decline both in terms of volume and edition sold। ये आपको आपकी केस स्टडी के लास्ट पेज पे ग्राफ में दिया हुआ है, as well as an impact on the overall revenue, this is also leading to a fall in the operating profit। तो 3 4 चीजें आपको याद रखनी है आंसर का स्ट्रक्चर। नंबर 1, कोई भी पैराग्राफ 4 5 लाइन से ज्यादा एक्सीड ना हो, दैट्स नंबर 2। नंबर 3, जहां जहां पे पॉसिबल हो नंबर्स, बेसिक कैलकुलेशंस, परसेंटेजेस, ट्रेंड, ये दिखाओ। नंबर 4, यूज एग्जाम्पल्स वेर एवर पॉसिबल। तो आप देखो यहाँ पे अगर आप पॉलिटिकल फैक्टर में जाएंगे, $8,000 million, मैंने एक नंबर यूज किया है, जस्ट पुट इट इन अ डिफरेंट कलर। यहाँ पे आप जाएंगे
तो वॉल्यूम ऑफ एडिशन सोल्ड एज वेल एज इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल रेवेन्यू एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये सारे क्या है, नंबर। आई जस्ट लेफ्ट बैंक ब्लैंक स्पेसेस क्योंकि नंबर आप डाल पाएंगे। और हर फैक्टर में 3 पैराग्राफ है। पैराग्राफ 2 सब में कॉमन है, फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। इज द सोशल फैक्टर क्लियर टू एवरीवन? Mercy has strengthened community feeling by means of communication with stakeholder in respect of my can this be considered favorable social factor? So आयुषी जैसे देखो, अगेन वापस एक चीज जो गलती नहीं करनी है, सोशल फैक्टर डारलैंड लेवल पे एप्लीकेबल है। पैराग्राफ 1 में आप मर से रिलेटेड कुछ नहीं लिख सकते। अब आप कह रहे हो कि मर्से हैज अ स्ट्रेंथन्ड कम्युनिटी फीलिंग, कैन दिस बी कंसिडर्ड फेवरेबल सोशल फैक्टर? ये सोशल फैक्टर किसका है, ये पॉइंट किसका है, मर्से का है। पहला पैराग्राफ किसका है, फैक्टर एट अ कंट्री लेवल। सो ये वाली चीज पैराग्राफ 1 में नहीं आ सकती। ये अगर आपको लिखना है, दिस विल बी पार्ट ऑफ पैराग्राफ नंबर 3। एंड पैराग्राफ नंबर 3 में आप फेवरेबल अनफेवरेबल नहीं बताते। पैराग्राफ नंबर 3 में आप क्या बताते हो, इम्पैक्ट ऑफ द फैक्टर ऑन द कंपनी। मैं यहाँ पे चाहूँ तो एक जगह पे लिख देता हूँ, जस्ट सो दैट यू डोंट कंफ्यूज इट। आयुषी, आर वी क्लियर विद दिस? क्योंकि ये अगर ये करा एग्जाम में तो दिस विल बी अ फंडामेंटल मिस्टेक, जिसकी वजह से पूरा आंसर गलत हो जाएगा। I'll write it here. This is the impact of the factor on the company. तो इसको प्लीज माइंड में रखना। I'll put this in a different color. So do not get confused. पहला पैराग्राफ इज फैक्टर ओवरऑल। थर्ड पैराग्राफ इज उस फैक्टर का पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, लीगल, उसका इम्पैक्ट ऑन मर्सिक। मिक्स एंड मैच नहीं करना है इंफॉर्मेशन को। ठीक है आयुषी, आर वी क्लियर ऑन दिस? ठीक है, छोटी छोटी गलतियां कैन कॉस्ट यू द एंटायर क्वेश्चन। दैट इज व्हाई द स्ट्रक्चर हैज टू बी फॉलोड, एंड स्ट्रक्चर को फॉलो करने के लिए यू हैव टू बी क्लियर कहाँ पे क्या और क्यों। क्यों इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके, लेट्स गो टू व्हाट श्रुति हैज मेंशन्ड। line 2, it should be Darland or Mersey, right? Political factor, what is political factor? Yes, yes, Shruti, correct. So I'll just change this here. So this is not Mersey, this is Darland. ठीक है, ओके, एवरीवनस क्लियर हाउ टू क्रिएट पेस्टल? तो बहुत कम इंफॉर्मेशन है, बट जितनी इंफॉर्मेशन है ब्लैक एंड व्हाइट प्लस ग्रे, उसको मिला के पॉलिटिकल हो गया है, सोशल मैंने कर दिया है, टेक्नोलॉजी मैंने थोड़ा सा आपको डाल के दे दिया है, लीगल भी मैंने थोड़ा सा डाल के दिया है, बट एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक इज समथिंग यू मे वांट टू प्रैक्टिस। ठीक है, इज द लॉजिक क्लियर टू एवरीवन? क्विक रिस्पॉन्स ऑन द चैट, एवरीवनस क्लियर? अब क्या पेस्टल का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। क्या मेरे को एग्जाम में और इन्फॉर्मेशन मिल सकती है फॉर पेस्टल? द आंसर इज यस, कुछ भी मिल सकता है। बी रेडी फॉर इट, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। ठीक है, और क्या कोई आंसर, क्या कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस होगा? नहीं, क्योंकि हर क्वेश्चन के लिए एग्जिबिट होता है। तो अगर कुछ नहीं समझ में आया तो एटलीस्ट एग्जिबिट से क्या समझ में आ रहा है, उसका इम्पैक्ट क्वेश्चन पे क्या है, वो तो हम लिख ही सकते हैं। ठीक है, क्लियर, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट मी जस्ट क्विकली चेक। बहुत सारे स्टूडेंट ने तो रिप्लाई कर ही दिया है। सिया, आर वी क्लियर? रिद्धि, आर वी क्लियर? मंजू एंड मन्नत, मन्नत समझ में आया आंसर को स्ट्रक्चर कैसे लिख करना है? बिकॉज दैट वाज योर क्वेश्चन व्हेन वी स्टार्टेड दिस। Okay, can the economic factor explain about the industry is economically significant and is about 8,000 million in terms of revenue? So we assume economy to be growing and stable. Okay, so तान्या, आप मैगजीन इंडस्ट्री से इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं निकालोगे, बिकॉज इकोनॉमी इज अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज। आप ये जरूर कह सकते हो कि इकोनॉमी स्टेबल लग रही है, एंड वन ऑफ द रीजन व्हाई आई से इज कि मैगजीन इंडस्ट्री इज ग्रोइंग। सो इकोनॉमी से इंडस्ट्री ला सकते हैं, इंडस्ट्री से इकोनॉमी नहीं जा सकते। ठीक है, तो वो थोड़ा सा ट्रांजिशन ध्यान रखना है कहाँ से क्या पॉसिबल है। सो इफ यू वांट टू मेक अ नोट ऑफ इट, जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट। कंट्री से इंडस्ट्री पे आया जा सकता है, इकोनॉमी से इंडस्ट्री। ठीक है, बट इंडस्ट्री से इकोनॉमी थोड़ा सा बहुत इनडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट कीप दैट एलिमेंट इन माइंड। एनवायरमेंटल में रॉ मटेरियल सप्लाई फ्रॉम सस्टेनेबल सोर्स से जा सकते हैं। सो वंशिका, विच पैराग्राफ? आप मुझे पैराग्राफ बताओगे तो मैं बताऊंगा। जनरल पॉइंट में अगर मैं लिख भी दूंगा, हाँ,
दैट विल नॉट गिव मी कॉन्फिडेंस कि आप उसको सही पैराग्राफ में डालोगे। सो वो जो भी आपने पॉइंट चैट पे लिखा है उसके आगे मुझे लिख के बताइए पैराग्राफ 1, 2 या 3, देन आई विल टेल यू कि जा सकता है कि नहीं। ठीक है, सो वी हैव टू स्टार्ट बीइंग वेरी वेरी स्पेसिफिक। तो जो एनवायरमेंटल वाला एस्पेक्ट है पैराग्राफ नंबर 3 बिल्कुल जा सकता है। ठीक है, पैराग्राफ नंबर 3 इज जस्टिफिकेशन। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं ना, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। सो दिस इज इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। तो पहले आप क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं आपके सामने ब्रीफ कॉन्टेक्स्ट अबाउट व्हाट इज इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। तो अपनी लैंग्वेज में 2-3 लाइंस यू शुड मेंशन एज अ कॉन्टेक्स्ट। डायरेक्टली आंसर पे जंप नहीं करना है, हमेशा कोशिश करो एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग करो। सो जस्ट डू दैट हियर। उसके बाद सबसे पहले आप क्या करेंगे, यू विल राइट ऑल द 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल, फाइनेंशियल, मैन्युफैक्चर्ड, सोशल, रिलेशनशिप, ह्यूमन, इंटेलेक्चुअल, नेचुरल। इस पे भी मैंने आपको क्लास में वैसे स्ट्रक्चर दिया था, बट मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ। एवरी फैक्टर, सॉरी एवरी कैपिटल विल शुड हैव 2 पैराग्राफ। फाइनेंशियल में 2, मैन्युफैक्चर में 2, सोशल, ऐसे सब में 2-2 पैराग्राफ। उसमें से जो आपका पैराग्राफ 1 होगा, पैराग्राफ 1 विल बी एक्सप्लेनिंग द फैक्टर। ठीक है, इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, और जो आपका सेकंड पैराग्राफ है पैराग्राफ 2, तो पैराग्राफ 2 जब भी आपसे इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का क्वेश्चन आएगा, वो आपको साथ में कोई ना कोई बिजनेस प्रपोजल देगा। क्योंकि बिजनेस प्रपोजल से ही वो आपको कहेंगे कि इस प्रपोजल से देख के बताइए कि कंपनी का, अगर कंपनी ये प्रपोजल करती इम्प्लीमेंट, तो उनका फाइनेंशियल कैपिटल, मैन्युफैक्चर कैपिटल, सोशल कैपिटल, ह्यूमन रिलेशनशिप कैपिटल कैसे इंक्रीज होगा। सो पैराग्राफ 2 हैज टू बी डिराइव्ड फ्रॉम द एग्जिबिट ऑफ द केस स्टडी। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर आपके पास कोई प्रपोजल आता है जिसमें कंपनी कोई पैसा रेज कर रही है, वेदर इट इज डेट और इक्विटी, तो दैट विल बी पार्ट ऑफ योर पैराग्राफ नंबर 2। ठीक है, अब मोटा मोटा मैं आपको ये बताता हूँ कि इस कंपनी में, मर्से में, फाइनेंशियल कैपिटल एप्लीकेबल है, मैन्युफैक्चर कैपिटल एप्लीकेबल है, सोशल, ह्यूमन, इंटेलेक्चुअल सब एप्लीकेबल है। जनरली ये पांचों कैपिटल, फर्स्ट 5 फ्रॉम कैपिटल A to कैपिटल E, हर कंपनी में एप्लीकेबल होता है। नेचुरल कैपिटल कुछ कंपनीज में डायरेक्टली एप्लीकेबल होता है, कुछ कंपनीज में इनडायरेक्टली एप्लीकेबल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मर्से का अपना कोई नेचुरल कैपिटल नहीं है, उनके पास कोई एक्सेस टू नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, वो सप्लायर से पेपर ले रहे हैं। अब जो सप्लायर उनको पेपर देंगे, उनके पास एक्सेस टू नेचुरल कैपिटल होगा, बिकॉज पेपर कहाँ से प्रोड्यूस होता है, फ्रॉम रबर। तो हो सकता है मर्से के जो सप्लायर्स हैं पेपर वाले, दे हैव एक्सेस टू रबर प्लांटेशंस विच विल बी अ नेचुरल कैपिटल। तो मैंने देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डायरेक्टली नॉट एप्लीकेबल, एंड फॉर एवरी कैपिटल जो आपको लगता है एप्लीकेबल है या नहीं है, यू हैव टू एक्सप्लेन द रीजन। तो अगर आपको लगता है मर्से के पास फाइनेंशियल कैपिटल है, क्यों, किस में लिखेंगे, पैराग्राफ नंबर 1। अगर आपको लगता है मर्से के पास मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल है, क्यों, पैराग्राफ नंबर 1। ठीक है, सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फाइनेंशियल से लेके इंटेलेक्चुअल तक सारे कैपिटल एप्लीकेबल है मर्से को डायरेक्टली, नेचुरल कैपिटल इज एप्लीकेबल ओनली इनडायरेक्ट। अभी आप सिर्फ पैराग्राफ 1 लिख के रख सकते हो अपने पास, आपके पास पैराग्राफ 2 रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। एग्जिबिट में पैराग्राफ 2 रिलेटेड इंफॉर्मेशन आएगी, तो उससे आप अपने आंसर्स को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अप्रोच समझ में आ गई ना। लेट मी जस्ट आस्क यू अ क्वेश्चन ऑल ऑफ यू, सिंस यू ऑल्सो नीड सम क्लैरिटी। मर्से का मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल क्या होगा। हाँ जी, मर्से का मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल, पहली बात तो एप्लीकेबल है या नहीं, यस और नो। अगर आप कहते हो यस, व्हाट इज द रीजन, अगर आप कहते हो नो, व्हाट इज द रीजन। एवरीवन ऑन द चैट, लेट्स सी योर रीजनिंग एबिलिटी। ओके, Sia says, let's just quickly go to what Sia has mentioned. Okay, printing machines, printing press, binding process, 8 divisions, head office, printing equipment. Okay, division office, printing machinery. Okay, so first things first, बाइंडिंग प्रोसेस, प्रिंटिंग प्रोसेस, अगर उनका कोई अपना ट्रांसपोर्टेशन का कोई सॉफ्टवेयर है, कोई हार्डवेयर है,
कुछ भी दोज काइंड ऑफ एलिमेंट्स दे विल बी योर मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल। बट जो आपकी 8 डिविजन्स हैं, डिवीजन इज एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कि मेरे पास एक सेटअप है जो मेरा लेजर का है, एक सेटअप है जो मेरा प्रॉब्ली स्पोर्ट्स का है। जो डिवीजन पर से है, बिकॉज डिवीजन इज नथिंग बट अ सेटअप ऑन अ पीस ऑफ पेपर, कि एक हेड होगा, उसके नीचे ये टीम होगी, इसमें ये काम होगा, उसको मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल में क्लासिफाई नहीं कर सकते। बिकॉज प्लीज कीप इन माइंड एवरीवन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल। मैंने लास्ट क्लास में आपको लिख के भी दिया था, इफ यू रिमेंबर। क्या डेफिनेशन थी? कैन एनीवन टेल मी व्हाट वाज द डेफिनेशन वी क्रिएटेड ऑन आवर ओन फ्रॉम अ कैपिटल पर्सपेक्टिव? हाउ डू यू डिफाइन कैपिटल? एनीवन वांट्स टू शेयर? किसी को याद है? समथिंग दैट हेल्प्स द कंपनी ग्रो, नहीं, सम रिसोर्स। तो कैपिटल इज एनी रिसोर्स। पहला पार्ट, कैपिटल इज एनी रिसोर्स व्हेन इन्वेस्टेड इन द बिजनेस विल हेल्प द कंपनी टू ग्रो। डायरेक्टली कैपिटल नहीं ग्रो करेगा, मतलब कैपिटल पहले होना चाहिए, फिर आप उसको इन्वेस्ट करोगे इन द राइट मैनर, देन इट विल हेल्प द कंपनी ग्रो। अब डिविजन स्ट्रक्चर आपको कोई रिसोर्स नहीं है जो आप कंपनी में इन्वेस्ट करोगे और उसको ग्रो करेगा। वो क्या है? वो आपने सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन को लुक एंड फील दे रखा है। ठीक है, तो जिसके भी पॉइंट्स में डिवीजन स्ट्रक्चर है, 8 डिविजन्स हैं, प्लीज स्ट्राइक इट ऑफ। दैट इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल। अगर जो यश ने पॉइंट लिखा है विच इज डिवीजन ऑफिस, मान लीजिए आपके पास हर डिवीजन की अपनी एक पूरी बिल्डिंग है, बिल्डिंग में आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पे लोग बैठते हैं, आपके पास कंप्यूटर इक्विपमेंट्स है, आपके पास सर्वर्स हैं, ऑल ऑफ दैट, दैट इज कैपिटल। ठीक है, तो कैसे समझ में आएगा कि उसको हमें इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में कैपिटल में लिखना है कि नहीं लिखना है? इट विल डिपेंड ऑन वेदर इट इज अ रिसोर्स, नंबर वन। सेकेंड, कैन दैट रिसोर्स बी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस? ठीक है, एंड थर्ड, इफ इन्वेस्टेड विल इट हेल्प द कंपनी ग्रो? देखो, हर चीज ना एसबीएल में बहुत लॉजिकल है। सबसे पहले मैं आपको क्या बोलता हूं, आपको हमेशा ना थॉट्स को डंप करना चाहिए। कोई भी थॉट गलत नहीं होता, बट आफ्टर यू डंप द थॉट्स, हर पॉइंट के पीछे आपका एक रीजन होना चाहिए। अगर वो रीजन प्रैक्टिकल नहीं है, वैलिड नहीं है, देन पॉइंट को हटाओ। बट अगर आपको लगता है रीजन वैलिड है, प्रैक्टिकल है, तो पॉइंट को रखो। ठीक है, ओके, लेट्स लुक एट इट। तो यश से सॉफ्टवेयर वुड बी कंसिडर्ड इंटेलेक्चुअल कैपिटल, नहीं। सो यश, दिस इज वेयर वी गो रॉन्ग। व्हाट इज इंटेलेक्चुअल कैपिटल? इंटेलेक्चुअल कैपिटल इज द इंटेलिजेंस ऑफ पीपल। सॉफ्टवेयर में कोई इंटेलिजेंस किसने डाली है? लोगों ने। तो सॉफ्टवेयर इज मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल। सॉफ्टवेयर को बनाने के पीछे जो आपके एम्प्लॉयज के स्किल्स हैं, जो एक्सपीरियंस है, वो इंटेलेक्चुअल कैपिटल है। प्लीज कीप इन माइंड, ह्यूमन एंड इंटेलेक्चुअल कैपिटल इज रिलेटेड टू एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। सॉफ्टवेयर इंटेलेक्चुअल नहीं है। सॉफ्टवेयर क्या है? कुछ भी नहीं है। सॉफ्टवेयर कब शेप लेता है? जब कोई उसे बनाता है। कौन उसको बना सकता है? जिसके पास उसको बनाने का स्किल्स और एक्सपीरियंस होगा। सो पीपल, देयर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, दैट्स इंटेलेक्चुअल कैपिटल। और उस इंटेलेक्चुअल कैपिटल को यूज करके जो आप क्रिएट करते हो, whether it is a patent, whether it is a copyright, whether it is a software, whether it is an algorithm, whether it is a robot, वो आपका मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल है। मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल मींस जो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को एनहांस करता है। ओके, व्हाट अबाउट ब्रांड नेम? यस, यू विल हैव टू स्टार्ट गिविंग लॉजिक्स, नहीं तो मेरे को एक फियर है आप हर चीज को रटोगे। ठीक है, तो व्हाट डू यू थिंक, वेयर शुड ब्रांड नेम कम इनटू पिक्चर? व्हाट इज ब्रांड नेम? फाइनेंशियल है, नेचुरल है, ह्यूमन है, सोशल है, इंटेलेक्चुअल है, क्या है? ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज ब्रांड नेम? विच पार्ट ऑफ कैपिटल इज इट? Arnav says intellectual capital not related to intangible asset that gives competitive advantage. Intellectual capital, intellect, Arnav, intellect, जो इंटेंजिबल एसेट्स बनेंगे वो मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल में जाएगा। ह्यूमंस एंड एसेट्स के नॉट बी इक्वलेंट। ह्यूमंस क्रिएट एसेट्स, तो ह्यूमंस की इंटेलिजेंस इज इंटेलेक्चुअल कैपिटल। इस टाइम पे आके ना प्लीज अपने कॉन्सेप्ट्स को खराब मत करो। डेफिनेशन पढ़ो, गो एंड रीड। व्हाट इज इंटेलेक्चुअल कैपिटल? स्किल्स, competencies, experience. What is human capital? People, their knowledge, their motivation, their qualification. Human and intellectual capital is related to employees. अब हम उसमें डालना शुरू कर देंगे इंटेंजिबल एसेट्स, तो रायता फैल जाएगा।
ठीक है, सो प्लीज फोकस एंड डू नॉट मिसअप्रोप्रिएट योर कॉन्सेप्ट्स। ओके, हाँ जी, वेयर विल योर ब्रांड नेम कम इन टू पिक्चर? ऑनलाइन स्टूडेंट एवरीवन, लेट्स सी व्हाट डू यू थिंक। रिद्धि, ऑथर्स किस में आएंगे? ह्यूमन कैपिटल। ऑथर्स इज जस्ट पीपल। ऑथर्स के जो स्किल्स एंड एक्सपीरियंस है वो किस में आएंगे? इंटेलेक्चुअल कैपिटल। सो ह्यूमन एंड इंटेलेक्चुअल कैपिटल गोज टुगेदर। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कैन आई प्लीज रिक्वेस्ट an answer for brand names? I don't want to repeat it so many times. हाँ जी, anyone? So brand name will be manufactured capital. ब्रांड नेम इज एन आउटकम ऑफ एवरीथिंग दैट गोज इनटू द कंपनी। तो कंपनी के पास ब्रांड नेम क्या? ब्रांड। नाइकी के पास क्या है? उनका लोगो। दैट लोगो इज ऑल्सो रिसोर्स, क्योंकि जितने चीजों में नाइकी लोगो आएगा, पीपल विल प्रेफर दैट, पीपल विल बाय इट। सो व्हाट इज कैपिटल? एनी रिसोर्स दैट कैन बी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस विच विल हेल्प द कंपनी ग्रो। सो ब्रांड नेम इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल। ब्रांड नेम को पीछे बनाने का जो इंटेलेक्ट है वो किसका होगा? लोगों का। So that will be part of the intellectual capital. Please do not get confused between intellectual and manufactured. Brand name में Ayushi, what is the intellect in a brand name? What is brand name? It could be a logo, it could be name of the company. Who creates it? People. So लोगों का इंटेलिजेंस इज इंटेलेक्चुअल कैपिटल। उस इंटेलिजेंस से जो आप बनाते हो दैट इज मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल। उस मैन्युफैक्चर्ड से जो कंपनी को रिटर्न मिलता है दैट इज फाइनेंशियल कैपिटल। एवरीथिंग इज लॉजिकल, ठीक है। चलिए, एवरीवन क्लियर ऑन दिस? इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या थॉट प्रोसेस रहेगा, क्या स्ट्रक्चर रहेगा, अभी क्लियर? ओके, चलिए, आई जस्ट गो विद द फर्स्ट फ्यू रिस्पॉन्सेज। एनीवे सब लोग रिस्पॉन्स करेंगे नहीं। चलो, थर्ड एलिमेंट जो मैंने आपको एक क्वेश्चन और उसके पॉइंटर्स दे दिए हैं, दैट इज ऑन अ सिचुएशन कॉल्ड इनऑर्गेनिक ग्रोथ। अगर आपके पास एग्जाम में कोई सिचुएशन आती है जिसमें मर्से इज ट्राइंग टू अक्वायर अनदर कंपनी, अब वो कंपनी रिलेटेड मैगजीन कंपनी हो सकती है, वो कंपनी अनरिलेटेड भी हो सकती है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनऑर्गेनिक ग्रोथ दोनों केस में पॉसिबल है, रिलेटेड एंड अनरिलेटेड कंपनी एक्विजिशन। ये तो सबको क्लियर है कि इनऑर्गेनिक ग्रोथ मीन यू आर एक्वायरिंग अ कंपनी। ठीक है, तो अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मर्सेज एक्वायरिंग लेट्स से अनदर कॉम्पिटिटर हाइपोथेटिकली, व्हाट कुड बी द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस? ये रहा आपका आंसर। Now, two caveats here. Number one, these are only pointers. You will have to elaborate on your own. कोई भी पॉइंट दो तीन लाइनें से ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। सेकंड केविएट, दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट। ये सिर्फ मेरा इनिशियल ब्रेन डंप है। अगर आपको लगता है और एडवांटेजेस हो सकती है और डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, प्लीज फील फ्री टू ऐड। बट ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ सिनेरियो रिलेटिंग टू इनऑर्गेनिक ग्रोथ। इनऑर्गेनिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? किसी को इनऑर्गेनिक ग्रोथ में एज अ कॉन्सेप्ट कोई डाउट है? I'll just color it till the time some of you give me some response. ओके, चलिए, लेट्स गो विद द फर्स्ट फ्यू रिस्पॉन्सेज। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो आपके पास एग्जाम में आ सकता है, जो आपको करना चाहिए ट्राई प्रिपरेशन, इज एनीथिंग रिलेटिंग टू साइबर सिक्योरिटी। नाउ मर्से इज यूजिंग वेरी लेस टेक्नोलॉजी बट इट इज यूजिंग, एंड जहां पे भी आप टेक्नोलॉजी यूज करते हो, आपके पास कंपनी का खुद का प्लस कंपनी का अपने कस्टमर्स का सप्लायर्स का सेंसिटिव डेटा होता है। सप्लायर्स के जीमेल आईडीज हो सकते हैं, मतलब ईमेल आईडीज हो सकते हैं, सप्लायर के इनवॉइस डिटेल्स हो सकती है, सप्लायर के कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, कस्टमर्स की ईमेल आईडीज हो सकती हैं, टेलीफोन नंबर्स हो सकते हैं, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हो सकते हैं। तो जहाँ पे भी टेक्नोलॉजी होती है कंपनी में, वहां पे ये रिस्क हमेशा साथ में होता है, विच इज साइबर सिक्योरिटी। तो अगर इस कंपनी के ऊपर, मर्से के ऊपर, अगर कोई साइबर सिक्योरिटी अटैक होता है, ऐसा कोई सिनारियो एग्जाम में आता है, तो वो क्वेश्चन आपसे दो पार्ट्स में पूछा जाएगा। अभी एक क्वेश्चन का थॉट हमने कहाँ से लिया है? एक पहले पास पेपर था विच वाज एनसी टेक, जहां पे एक ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी इंस्टेंस हुआ था। दैट वाज आल्सो टेक्नोलॉजी कंपनी। मर्से इज नॉट अ टेक्नोलॉजी कंपनी बट मर्से इज यूजिंग टेक्नोलॉजी।
तो अगर मर्से के ऊपर साइबर सिक्योरिटी अटैक हो हुआ तो क्या क्या इश्यूज आएंगे, ये रही आपकी लिस्ट। आई जस्ट चेंज दिस टू डार्लेट। तो ये रही आपकी लिस्ट ऑफ दोज इश्यूज। अगेन दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट एंड यू विल हैव टू इलैबोरेट। एंड अगर वो आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि फ्यूचर में हमें इन सिक्योरिटी ब्रीचेस को अवॉइड करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए आपकी क्या क्या रिकमेंडेशंस है, ये रही आपकी रिकमेंडेशंस की लिस्ट। सेम वही केवेट, दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट एंड मुझे नहीं लगता आप इससे ज्यादा पॉइंट सोचने भी वाले हो। ठीक है, बट अगर आपको सोचना है फील फ्री, ऐड टू द लिस्ट। सेकंड इज जो भी आपको पॉइंटर्स यहाँ पे दे रखे हैं उसको यू शुड इलैबोरेट एंड कीप इट विद योर सेल्फ इन लाइक 2-3 लाइन्स। मैं आपको 4-5 सेशन में जितना डेप्थ में केस स्टडी एनालाइज कर रहा हूँ उसके दो पर्पस है। एक तो आपको मर्से का बिजनेस अच्छे से समझ में आ जाए। सेकंड, हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे सिनेरियो सोच पाए जिसके लिए आप अपने पॉइंटर्स लिख के रख लो। लाइक आई कीप सेइंग, 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी सिनेरियो अगर इसमें इस लिस्ट में से आपके एग्जाम में आ गए तो आप पैनिक नहीं करोगे, आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, आपको थॉट्स ऑलरेडी पता हैं, आपको सिर्फ उसको वहां पे जाके रिप्रोड्यूस करना है यूजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एग्जिबिट। तो साइबर सिक्योरिटी could also be a good question, good probable question from an examination perspective. Is this clear to everyone? तो आई थिंक अभी अगर आप ब्रॉडली देखेंगे सारे एनालिसिस कंबाइंड टुगेदर यू वुड हैव अबाउट, बाय द एंड ऑफ डे टुमारो यू विल हैव अबाउट 20-25 डिफरेंट सिनारियोस। वो भी सारे आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लिए फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। आई नो अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज मिसिंग बट वी कैन ओनली एस्टिमेट एंड गेस्टिमेट, है ना, पेपर तो हमारे पास आने वाला नहीं है। तो अगर इसको भी आपने थॉट लगा के प्रिपेयर कर लिया कि इसमें क्या पॉइंट हो सकता है, उसका क्या रेलेवेंस हो सकता है, क्या हम रीजनिंग दे सकते हैं, यू आर वेरी मच रेडी फॉर योर एग्जाम ऑन द 3rd of March। ठीक है, ओके, सो दैट्स अनदर सिनेरियो दैट आई वांटेड टू डिस्कस। ओके, इसके बाद चलते हैं एक और सिनेरियो में। अगर मर्से गेट्स इनटू न्यू लाइन ऑफ बिजनेस, आज वो मैगजीन बिजनेस में है, कल को मान लीजिए दे वांट टू सेट अप अ न्यूज चैनल, दे वांट टू गेट इनटू पॉडकास्ट, दे वांट टू गेट इनटू मूवीज, दे वांट टू गेट इनटू एंटरटेनमेंट, कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में व्हाट विल बी दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ गेटिंग इनटू अ न्यू लाइन ऑफ बिजनेस। ये रहे आपके जेनरिक एडवांटेजेस, ये रहे आपके जेनरिक डिसएडवांटेजेस। इनको भी अगर आप इलाबोरेट कर लोगे आपको मर्से के बिजनेस पे, मर्से के मैनेजमेंट के थॉट प्रोसेस पे कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो ये डॉक्यूमेंट अलग अलग बनाने, आई कैन क्रिएट अ मास्टर डॉक्यूमेंट ऑल्सो बट द रीजन आई एम क्रिएटिंग सेपरेट डॉक्यूमेंट्स फॉर सेपरेट डेज ऑफ द केस स्टडी डिस्कशन इज, आप हर डॉक्यूमेंट को एक इंडिपेंडेंट एग्जिबिट मान के उस पर वर्क करें। तो जिन्होंने शुरू से क्लासेस करी है आई एम अज्यूमिंग कि आपने वर्जन 3 तक अपने पॉइंट्स लिख लिए होंगे, उनको इलाबोरेट करना स्टार्ट कर दिया होगा। तो टुडे इज वर्जन 4, टुमारो विल गेट द लास्ट वर्जन विच इज वर्जन 5। ठीक है, तो अगर न्यू लाइन ऑफ बिजनेस आई तो ये रहे आपके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इज एवरीवन क्लियर ऑन दिस? सब कुछ आपके सामने है, थॉट्स भी हैं, पॉइंट्स भी हैं, लॉजिक्स भी हैं, आपको सिर्फ उसको अब्जॉर्ब करके थोड़ा सा और एक्सपैंड करना है। And ACC is doing a very good job by giving you so many days in advance of the exam to prepare and acclimatize with Mercy. हाँ जी, quickly on the chat. Scenario sorted. जितना टाइम मुझे सिनारियो बनाने में, सोचने में, लिखने में लगता है उससे ज्यादा टाइम आपको यस नो में लगता है। आप वाई और एन लिख दो। आई थिंक द ES इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। वाई एंड इज ओके फॉर मी। चलिए, कुछ स्टूडेंट्स के रिप्लाईज आ गए, सो लेट्स जस्ट गो विद दिस। ओके, नेक्स्ट सिनारियो में आपके साथ अलग से डिस्कस करूंगा। मैंने यहाँ पे टॉपिक लिख दिया है एनपीवी एनालिसिस। अब वो आपसे एग्जाम में एनपीवी कैलकुलेशन नहीं करवाएंगे बट वो आपको एनपीवी एनालिसिस दे सकते हैं जिसको आपको एनालाइज करना पड़ेगा। ये आप दो पेपर से कर सकते हो। एक मैंने पेपर आपको यहाँ पे दिया है TT4U, दिस इज अ पास्ट पेपर, इसका टास्क 2A। और सेकेंड आप पेपर जो कर सकते हो, जो आज हम डिस्कस भी करेंगे, दैट इज स्मार्टवेयर। तो मैं स्मार्टवेयर का आपको एक एनपीवी एनालिसिस का जो क्वेश्चन है उसको इंटरप्रेट करना सिखा दूंगा, कैसे आपको उसको रीड करना है, क्या आपका थॉट प्रोसेस होगा। जो मैं आपको थॉट प्रोसेस समझाऊंगा वो मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी लिख के दे भी दिया है। तो एनपीवी एनालिसिस से क्वेश्चन का जो इंटेंट होता है, जो पर्पस होता है, दैट इज कि जिसने भी एनपीवी एनालिसिस करा है, ये ध्यान रखना, जब एग्जाम में आपको एनपीवी एनालिसिस मिलेगा बना बनाया
It will also say कि this has not been prepared by somebody in the finance department. तो एनपीवी एनालिसिस बनाने का काम किसका होना चाहिए? somebody in the finance department. मार्केटिंग वाला, सेल्स वाला, एचआर वाला, आईटी वाला नहीं एनपीवी एनालिसिस कर सकता। ठीक है ना? बिकॉज the analysis has not been done by a person from a finance background, the probability is कि most of the NPV analysis is incorrect. अब आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि अच्छा दिस हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय मार्केटिंग डिपार्टमेंट सो इट इज इनकरेक्ट। नो, दे आर सेइंग कि जितना भी एनपीवी एनालिसिस हुआ है, हर लाइन आइटम को आपको रीड करके चैलेंज करना है कि आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग वो गलत क्यों हो सकता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। ठीक है? तो जब भी आपके पास एनपीवी एनालिसिस क्वेश्चन आएगा उसका इंटेंट यही होता है। अब कहीं पे भी बिजनेस प्रपोजल है, वेदर इट इज न्यू लाइन ऑफ बिजनेस, वेदर इट इज न्यू एक्विजिशन, वेदर इट इज लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, वेदर इट इज डिसकंटिन्यूइंग सम प्रोडक्ट, वेदर इट इज लॉन्चिंग मोर टेक्नोलॉजी, कोई भी बिजनेस प्रपोजल का कॉरेस्पॉन्डिंग एनपीवी एनालिसिस हो सकता है। क्या ये क्वेश्चन पहले आया है एग्जाम में? द आंसर इज यस। दो पेपर तो मैंने आपको लिख के दे दिए, दो बार तो ये आ चुका है। एंड इट हैज बीन क्वाइट सम टाइम जब से ये एनपीवी एनालिसिस एज एन एसबीएल क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। सो अगेन देयर इज अ प्रोबेबिलिटी इट में कम। नहीं आया तो भी दिक्कत नहीं, आया तो मेरे अकॉर्डिंगली दिस इज बोनस मार्क्स, क्योंकि आपको पहले से पता है कैसे उसको रीड करना है, बस उसको आपको वहां पे जाके लिखना है। ठीक है? सो आई विल शो यू हाउ टू एनालाइज दिस इन द स्मार्टवेयर क्वेश्चन। लेट मी जस्ट क्विकली गो टू द चैट एंड चेक। Okay, what does Riddhi say? Mercer is currently providing only soft copies of their magazines on the digital platform. Transition digital magazine, would it be a new business? No, that will be change of technology. ठीक है? तो मैं जो कर रहा था उसको डिफरेंटली कर रहा हूं, दैट के नॉट बी न्यू बिजनेस। न्यू बिजनेस इज व्हेन यू डू समथिंग दैट यू आर नॉट डूइंग, तभी उसको न्यू बोला जाएगा। अगर आप आंसर ऑफ मैट्रिक्स के अकॉर्डिंगली रिद्धि इसको इंटरप्रेट करोगे, व्हाट इज आंसर ऑफ मैट्रिक्स में? मार्केट डेवलपमेंट, व्हेन यू एंटरिंग अ न्यू मार्केट। व्हाट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट? व्हेन यू आर डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट। आप उसकी पैकेजिंग रीपैकेजिंग कर दो, आप उसके इंग्रेडिएंट्स चेंज कर दो, दैट इज नॉट न्यू बिजनेस। ठीक है? आई होप दैट आंसर्स दिस। ओके, ठीक है। सो दैट वाज द क्वेश्चन दैट वी हैव देयर। ओके, तो क्या इसको छोड़ते हैं? एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिया, मैं पहले आपको इसका थॉट प्रोसेस समझाता हूँ, इसको भी फिर हम लोग स्मार्टवेयर पे जाके इंटरप्रेट करेंगे। तो क्वेश्चन किस टॉपिक पे है? आई जस्ट पुट दिस इन अ डिफरेंट कलर। इट इज ऑन पोर्टस डायमंड। अब पोर्टस डायमंड में ना बहुत कम आया है। ठीक है? एंड दैट इज व्हाई आई पर्सनली फील कि जो चीजें कम आती हैं वो आने के चांसेस हैं, और जो आ रही हैं वो तो एनीवेज रिपीट हो ही रही हैं। तो वन क्वेश्चन दैट कुड रिपीट बिकॉज इट हैज नॉट बीन रिपीटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम इज पोर्टस डायमंड। अब पोर्टस डायमंड का सबको कॉन्सेप्ट पता है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एवरीवन इज कंफर्टेबल विद पोर्टस डायमंड? थ्योरी तो सबको ही पता होगी, है ना? ओके ग्रेट। सो अगर थ्योरी आपको पता है तो सबसे पहले देखो, मैंने थ्योरी के चार कंपोनेंट्स यहाँ पे लिख लिए। डिमांड कंडीशंस, सप्लाई कंडीशन, जिसको आप फैक्टर कंडीशन भी बोल सकते हो, दोनों लिख देते हैं। देन आपके पास स्ट्रक्चर, स्ट्रैटेजी एंड राइवलरी होता है। और फोर्थ जो कंपोनेंट होता है पोर्टस डायमंड का, दैट इज रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्री। सबसे पहले तो ये चार कंपोनेंट्स लिख लो। अब आपके लिए ये जो एलिमेंट इन ब्राउन और रेड, विद वॉट एवर कलर इट इज विजिबल, ये मैंने आपको एग्जांपल्स दिए कि डिमांड कंडीशंस में क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है, सप्लाई कंडीशन में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर, स्ट्रैटेजी, राइवलरी में, सिमिलरली रिलेटिंग एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज में किस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है? तो अगर आप देखोगे आपकी डिमांड कंडीशंस में क्या आ रहा है? थिंग्स रिलेटिंग टू पॉपुलेशन, बर्थ रेट, डेथ रेट, मिडिल क्लास, इनकम, लाइफस्टाइल, इन्फ्लेशन, ग्रोइंग इकोनॉमी एंड रीडर्स। जो भी फैक्टर इंडिकेट करे कि फ्यूचर में डिमांड ज्यादा होगी या कम होगी, दैट हैज टू बी पार्ट ऑफ योर डिमांड कंडीशंस का एनालिसिस। यहाँ पे आपको आंसर लिखने का ना पूरा स्ट्रक्चर है, मतलब एक तरह से आंसर ही है, बस आपको क्या डालना है? फैक्ट्स एंड फिगर्स। वो कहाँ मिलेंगी? एग्जाम में। तो पहले तो आपने फैक्टर लिख दिया। अब फैक्टर कौन सा होगा, किसके बारे में कहाँ इंफॉर्मेशन आएगी, वो मैंने आपको ये ब्रैकेट में दे रखा है। सो डिमांड कंडीशन ये हो गया। ऐसे आप सप्लाई फैक्टर कंडीशन में जाएंगे तो कंटेंट क्रिएटर्स, सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये सारे आपके सप्लाई कंडीशंस में आएंगे। स्ट्रक्चर, स्ट्रैटेजी, राइवलरी में क्या आता है? कंपटीशन,
थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, बैरियर टू एंट्री, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ऑर्गेनाइज वर्सेस अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इनमें से कोई इंफॉर्मेशन मिले तो वो स्ट्रक्चर स्ट्रेटेजी राइवलरी में जाएगी। और लास्ट एलिमेंट होता है आपका रिलेटिंग इंडस्ट्री, रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्री, वेरिन यू विल हैव थिंग्स लाइक लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट पेनिट्रेशन, रिसाइकलर्स, एक्सेट्रा। तो सबसे पहले तो माइंड में ये क्लियर रखो कि डिमांड कंडीशन होती क्या है, रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्री होती क्या है। क्योंकि जो आपका जो मीनिंग है वही इंफॉर्मेशन आप एग्जीक्यूट में ढूंढोगे और उसी इंफॉर्मेशन को फिर आप एनालाइज करो। अब हर फैक्टर में यू शुड हैव 3 पैराग्राफ्स। ठीक है, so my teaching methodology, my methodology to prepare you for the exam is always to have a structure in mind। बहुत आसान हो जाता है आंसर लिखना और सोचना, नहीं तो घिचड़ पिचड़ ओवरलैपिंग बीटिंग अराउंड द बुश चलता रहेगा। आप कहोगे मैंने तो 2 पेज का आंसर में लिखा है, नंबर मुझे 5 ही क्यों मिला है 20 में से? बिकॉज मेजोरिटी ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन इज नॉट मेकिंग सेंस। ठीक है, सो इफ यू लुक एट इट, यहाँ पे भी देखिए मैंने आपको दिया है कि हर फैक्टर में आपके पास 3 पैराग्राफ होने चाहिए। पहला पैराग्राफ क्या है? फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलेटेड टू डिमांड कंडीशंस। क्यों आप कह रहे हो कि डिमांड ज्यादा होगी या कम होगी? फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखो। बिजनेस पेपर है, बिजनेस में हर चीज जस्टिफिकेशन किससे होती है? डेटा पॉइंट्स, नंबर्स से। फैक्ट्स का मतलब है एनीथिंग, डिमांड इंक्रीज हो रही है, मिडिल क्लास बढ़ रहा है। फिगर्स मतलब नंबर्स, मिडिल क्लास इज इंक्रीजिंग बाय 10%, 20%, लाइफ स्टाइल इज चेंजिंग, रीडर्स आर इंक्रीजिंग, कुछ ना कुछ तो होगा ही। सेकेंड पैराग्राफ में आप लिखोगे बिकॉज ऑफ पैराग्राफ नंबर 1, इज द डिमांड कंडीशन फेवरेबल और अनफेवरेबल। अब बैक ऑफ द माइंड कीप इन माइंड कि आप पोर्टर्स डायमंड कब करते हो। कैन एनीवन टेल मी एट व्हाट पॉइंट इन टाइम इन द बिजनेस डू कंपनीज डू पोर्टर्स डायमंड? लेट्स सी योर थॉट प्रोसेस। Mahek says deciding whether to entry a new country. Correct. So when you want to enter a country, उससे पहले आप पोर्टर्स डायमंड को एनालाइज करते हो। तो बिफोर एंटरिंग द कंट्री पोर्टर्स डायमंड यूज होता है। अब पोर्टर्स डायमंड आपको क्या देगा? सिर्फ कुछ इंडिकेटर देगा। मान लो सारे इंडिकेटर फेवरेबल है, तब भी द कंपनी कैन डिसाइड टू एंटर और नॉट एंटर। दोनों ऑप्शंस हैं, डिसीजन तो कंपनी का ही है ना। ये थोड़ी है कि मैंने पोर्टर्स डायमंड यूज कर लिया तो मुझे कंट्री में जाना ही पड़ेगा। सिमिलरली मान लो पोर्टर्स डायमंड में सारे फैक्टर अनफेवरेबल है, तब भी मैं जा सकता हूं। दोनों ऑप्शंस हैं। ठीक है, सो पोर्टर्स डायमंड कब यूज होगा? बी वेरी क्लियर, बिफोर एंटरिंग। क्योंकि आप बिफोर एंटरिंग क्या करते हो? एनालिसिस। एंड वो एनालिसिस कौन सा फ्रेमवर्क यूज करके होता है? पोर्टर्स डायमंड। ठीक है, तो पहला पैराग्राफ फैक्ट्स एंड फिगर, सेकंड पैराग्राफ क्या वो फैक्टर, डिमांड कंडीशन, सप्लाई कंडीशन फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। अगर फेवरेबल है तो हाउ विल द कंपनी लेवरेज? आज इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, मिडिल क्लास बढ़ रही है, तो एवरी कंपनी वांट्स टू एंटर। व्हाई? बिकॉज दे विल बी एबल टू सेल मोर। अगर आज इंडिया की पॉपुलेशन कम होती, बहुत सारी कंट्रीज क्यों नहीं आती कि पॉपुलेशन तो ग्रो नहीं हो रही, तो वी विल नॉट बी एबल टू सेल मोर। तो थर्ड पैराग्राफ ऑफ एवरी फैक्टर विल बी व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द कंपनी। तो वहां पे लिख लीजिए अगर फेवरेबल है तो हाउ डज द कंपनी लेवरेज, और अगर अनफेवरेबल है तो कंपनी उसको मिटिगेट कैसे करने वाली है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू विल हैव टू कीप इन माइंड फ्रॉम अ पोर्टर्स डायमंड पर्सपेक्टिव। तो 4 फैक्टर हो गए, फैक्टर के रिलेटेड पॉइंट्स हो गए, हर फैक्टर के 3 पैराग्राफ हो गए। पहला पैराग्राफ इज फैक्ट्स एंड फिगर्स, सेकंड इज फेवरेबल अनफेवरेबल, एंड थर्ड इज इम्पैक्ट ऑन द कंपनी। इज एवरीवन क्लियर इसको स्ट्रक्चर कैसे करना है? ये एक क्वेश्चन आई वांट एवरीवन टू प्रैक्टिस रीड फ्रॉम द स्मार्टवेयर पेपर, एंड मैं क्लास एंड होने से पहले स्मार्टवेयर के क्वेश्चन एंड आंसर्स को आपके पास इस जूम चैट पे भेज दूंगा, सो दैट यू डोंट हैव टू वेस्ट टाइम फिगरिंग आउट कि कहाँ पे पेपर है और कहाँ पे उसके आंसर है। एवरीवन क्लियर विद दिस? ओके, आई गॉट अ लॉट ऑफ यसेस। और इसको एक बार स्मार्टवेयर में भी देख लेंगे। सो दैट वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नाउ दीज आर सम रैंडम सिचुएशंस। मान लीजिए आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि सडनली बहुत सारे फ्रीलांस कंटेंट क्रिएटर्स, फ्रीलांस ऑथर्स, एम्प्लॉयज ऑफ मर्से आर लीविंग द कंपनी।
टर्नओवर का मतलब क्या होता है, मैं ब्रैकेट में डाल देता हूं, अट्रिशन। मान लीजिए आपको ये चीज दे रखी है इन योर केस स्टडी, ठीक है। अब उसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है, व्हाट कुड बी द इम्पैक्ट ऑफ द अट्रिशन। सेकेंड इज, हाउ विल द कंपनी मिटिगेट द रिस्क ऑफ अट्रिशन, लोगों को रोकेंगे कैसे, कैसे इंश्योर करेंगे कम लोग छोड़ के जाएं, कैसे इंश्योर करेंगे लोग छोड़ के ना जाएं। तो ये रहा आपका इम्पैक्ट। अगेन दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव लिस्ट, यू कैन ऐड मोर पॉइंट्स। ये रहे आपके मिटिगेशंस, नॉट एग्जॉस्टिव, यू कैन ऐड मोर पॉइंटर्स। क्लियर है यहाँ पे आपको। सो दिस इज वन स्टैंड अलोन सिचुएशन रिलेटिंग टू एम्प्लॉय अट्रिशन। इफ एट ऑल इट कम्स, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द पॉइंटर्स। पॉइंटर्स ये रहे, बस इसको, ये याद आपको कब होगा, देखो मैं आपको एक चीज बताया, तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन तो बहुत दी है, आज भी मिलेगी कल भी मिलेगी। वो इन्फॉर्मेशन आप रट नहीं सकते, क्योंकि देर आर जस्ट टू मेनी सिचुएशंस, टू मेनी पॉइंटर्स। ऑल यू कैन डू जस्टिस टू इज, हर पॉइंट को समझ लो। और समझोगे कैसे, उसको अपनी लैंग्वेज में इलाबोरेट करके। अगर आपने वो चीज समझ ली, तो आपको पॉइंट पे कमांड आ जाएगा, उस पॉइंट को आप एग्जामिनेशन में रिप्रोड्यूस कर पाओगे। अभी मैं आपको आज के सेशन में एक लिस्ट ऑफ जेनरिक पॉइंटर्स भी दूंगा, विच इज जेनरिक एडवांटेजेस, जेनरिक डिसएडवांटेजेस। वो भी अच्छी खासी लंबी लिस्ट है, उसमें से भी पॉइंट्स लेके आप कहीं पे भी ऐड डिलीट फिट कर सकते हो, बट करना तो पड़ेगा। सो यू हैव टू स्पेंड दोस टाइम, दैट टाइम टू एक्चुअली इलैबोरेट ऑल ऑफ दीज पॉइंटर्स इनटू आंसर्स, ठीक है। चलिए अगली सिचुएशन में चलते हैं। अगली सिचुएशन दैट आई हैव हियर इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन इज ट्रिपल बॉटम लाइन अकाउंटिंग। अब मान लीजिए अगर सस्टेनेबिलिटी ऑफ बिजनेस पे क्वेश्चन आता है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ बिजनेस मतलब ट्रिपल बॉटम लाइन अकाउंटिंग, तो उसका आंसर हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं। मेरे पास कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है, तो दिस इज ऑल गेस्टिमेट एस्टिमेट, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन आपको दिया, एक्सप्लेन हाउ कैन द कंपनी ड्राइव सस्टेनेबिलिटी एंड हाउ विल दैट इम्पैक्ट द थ्री पीस, पीपल, प्लैनेट, प्रॉफिट। अब हर पॉइंट आप देखोगे जो मैंने यहाँ पे लिखा है, उसमें मैंने गोइंग फॉरवर्ड लिखा है, क्योंकि अगर मैं सस्टेनेबिलिटी ड्राइव करूंगा तो इम्पैक्ट ऑब्वियसली आगे ही आएगा। बट कुछ कुछ चीजें कंपनी ऐसी भी है जो अभी कर रही है विच आर ऑल्सो सस्टेनेबल, जैसे जहां से वो पेपर ले रहे हैं फॉर प्रिंटिंग, वो सप्लायर सस्टेनेबल, सस्टेनेबिलिटी प्रमोट कर रहे हैं, तो कुछ एग्जिस्टिंग हो सकते हैं, मोस्टली इट विल बी फ्यूचरिस्टिक। तो मैंने क्या किया, इस आंसर को लिखने के लिए यू विल नीड टू फर्स्ट बिल्ड कॉन्टेक्स्ट। पहले तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग, डिफाइन सस्टेनेबिलिटी ऑफ बिजनेस। एंड जब भी मैं लिखूं डिफाइन, इट इज इन योर ओन वर्ड्स, कोई डेफिनेशन मगअप करके मेमोराइज करके वहां नहीं डालनी है, वैसे भी वो याद नहीं रहेगी, एग्जाम वाले दिन तो ज्यादा भूलते हैं हम। तो पहले कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करो, फिर मैंने लिख दिया पीपल, प्रॉफिट, प्लैनेट। जो जो मुझे लगा कंपनी कर सकती है टू ड्राइव सस्टेनेबिलिटी फॉर द फ्यूचर, वो मैंने यहाँ पे पॉइंट को डंप कर दिया। reduce wastage, encourage recycling, use of recycled paper, drive plantations, increase in profitability, improve reputation। जो आपके माइंड में पॉइंट आए पहले उस पॉइंट को डंप कर लो। वो पॉइंट मोस्टली आपके फ्यूचरिस्टिक ही होंगे, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी कंपनी आगे करेगी। अगर अभी कुछ कर रही है उसका भी रेफरेंस दे सकते हैं। एंड फॉर एवरी पॉइंट दैट यू हैव, जस्ट एलैबोरेट दैट इन 2-3 लाइन्स। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव में लीड टू एन इंक्रीज इन कॉस्ट अपफ्रंट, because to drive sustainability the company will have to first incur expenditure। अब उसके आगे कोई भी एग्जांपल, मान लो आज मेरी इलेक्ट्रिसिटी जो है दैट इज प्रोड्यूस फ्रॉम कोल, सस्टेनेबिलिटी ड्राइव करने के लिए लेट्स से आई एम मूविंग टू सोलर पावर, तो यहाँ पे एग्जांपल क्या आएगा, कंपनी में हैव टू इन्वेस्ट मनी इन सेटिंग अप सोलर पैनल्स। तो एग्जांपल्स आर अ मस्ट, और सारे एग्जांपल्स आपको एग्जिबिट में या प्रीसिंग केस स्टडी में नहीं दिए होंगे, यू विल हैव टू क्रिएट, बट दे हैव टू बी रेलेवेंट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको पॉइंट्स दे दिए हैं, रिलेटिंग टू पीपल, रिलेटिंग टू प्रॉफिट, रिलेटिंग टू प्लैनेट। अब जनरली अगर आप देखोगे तो ट्रिपल बॉटम लाइन अकाउंटिंग में प्रॉफिट सबसे एंड में होता है, तो वो मैं यहाँ पे कट करके आई एम जस्ट पुटिंग इट हियर सो दैट यू ऑल्सो फॉलो दैट ऑर्डर। नहीं तो आप कहोगे जो मैं आपने गलती करी हमने भी उसको रेप्लीकेट कर दिया, डोंट डू दैट।
ठीक है, सो यहाँ पे भी आपके पास बहुत सारे पॉइंटर्स हैं। अगेन दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, यू कैन ऐड, डिलीट, मॉडिफाई, वॉट एवर वर्क्स फॉर यू। सो दिस इज अ क्वेश्चन ऑन योर ट्रिपल बॉटम लाइन अकाउंटिंग। क्लियर है? Any doubts, any question? And obviously after the session you will have to give time to absorb. ये आपके पास बहुत सारा डेटा आ रहा है, डेटा आपके पास एवरी ऑल्टरनेट डे आ रहा है। व्हाई एम आई नॉट डूइंग क्लासेस एवरी डे? बिकॉज आई नीड टू गिव यू दोज 24 to 36 hours टू absorb। एक बार एब्जॉर्ब हो जाएगा तो देन ऑब्वियसली आप उसको बिल्ड कर लोगे। ठीक है, बट आफ्टर टुडे हमारी नेक्स्ट क्लास इज टुमारो, बिकॉज आई ऑल्सो वांट टू रैप अप ऑल ऑफ दिस इन टाइम सो दैट यू हैव टाइम फॉर सेल्फ स्टडी एंड सेल्फ एनालिसिस। ठीक है जी। ओके, चलिए, मोस्ट ऑफ यू रिस्पॉन्डेड विद यस ऑन द चैट, सो लेट्स कीप मूविंग फॉरवर्ड। एक और मैंने फ्रेमवर्क आपको कवर करके दिया है यहाँ पे, जो एक पास पेपर में आया था, विच इज बॉलरिज परफॉर्मेंस एक्सेलेंस फ्रेमवर्क। सबको बॉलरिज परफॉर्मेंस एक्सेलेंस फ्रेमवर्क के बारे में पता है? Students who have not been studying with me, especially those people, so you'll have to go back and refer to your syllabus. Baldrige Performance Excellence is a framework जो कि आपकी कंपनी की स्ट्रैटेजी को और लीडर्स को इवेल्युएट करने के लिए हेल्प करता है। सो यश यू विल हैव टू गो एंड रीड अबाउट दैट फ्रेमवर्क। ठीक है, वो फ्रेमवर्क कैसा दिखता है? वो फ्रेमवर्क में जितने भी आपको यहाँ पे ब्लू एलिमेंट्स दिख रहे हैं, लीडरशिप, स्ट्रैटेजी, कस्टमर, वर्कफोर्स, ऑपरेशन, रिजल्ट्स, एंड देन एंड में आपके पास मेजरमेंट एंड एनालिसिस आएगा। ये जो ब्लू वाले एलिमेंट्स हैं, दीज आर कमिंग फ्रॉम द फ्रेमवर्क। ठीक है, अब बॉलरेज परफॉर्मेंस एक्सेलेंस का क्वेश्चन एक बार एक पास पेपर में आया है, विच इज का पास पेपर कॉल्ड डूल्स कंपनी। ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो डूल्स कंपनी इज अ पास पेपर जिसमें क्वेश्चन आया, उसका टास्क 3 भी मैंने आपको स्पेसिफाई कर दिया, यहाँ पे है। ठीक है, अगर आपको पास पेपर से पढ़ना है, पास पेपर से भी पढ़ सकते हो, बट व्हाट आई हैव डन फॉर योर बेनिफिट इज मैंने कुछ कुछ चीजें यहाँ पे ऑलरेडी इलैबोरेट कर दी हैं। तो बॉलरेज परफॉर्मेंस एक्सीलेंस क्या कहता है कि अगर आपको अपने स्टेक होल्डर्स को बताना है या अपने आपको खुद भी एनालाइज करना है कंपनी कैसे कर रही है, सो यू हैव टू फोकस ऑन हाउ गुड इज द लीडरशिप। सो लीडरशिप के बारे में लिखना है। हाउ गुड इज द स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी के बारे में लिखना है। ऐसे यू हैव टू राइट अबाउट रिजल्ट्स, कस्टमर, वर्कफोर्स, ऑपरेशन, सबके बारे में। तो मैंने यहाँ पे आपको 3-4 पॉइंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लिख के भी दे दी है। जैसे फॉर एग्जांपल लीडरशिप, मर्से हैज अ टोटल ऑफ 12 डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव प्लस नॉन एग्जीक्यूटिव। एग्जाम में आप ईडी और एनईडी नहीं लिखेंगे, आपको वहां पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पूरा लिखना है। ठीक है, एंड दिस कंपनी इज वन अमंग्स द टॉप 5 मैगजीन पब्लिशर्स विद इन मर्से। बस अभी तक मुझे लीडरशिप में इतना ही मिला, या प्रॉब्ली दिस इज व्हाट आई हैव डम्प्ड। इफ यू फील यू हैव मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन राइट। तो लीडरशिप का मतलब है हाउ इज द लीडरशिप टीम ऑफ द कंपनी, हाउ गुड इज द लीडरशिप टीम, व्हाट आर सम ऑफ द फैक्ट्स एंड फिगर्स अबाउट लीडरशिप। सिमिलरली स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी मतलब डिसीजन मेकिंग ऑफ द कंपनी, कंपनी ने क्या क्या डिसीजंस लिए हैं फॉर इट्स ग्रोथ। द लीडरशिप टीम हैज टेकन सर्टेन की डिसीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंपनी सच एज, एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं, द लीडरशिप टीम ऑफ मर्स इज गुड एंड दे विल हेल्प इन टेकिंग गुड डिसीजन, फुल स्टॉप, 0 नंबर मिलेगा इसमें। क्योंकि एसबीएल पेपर इज एप्लीकेशन ओरिएंटेड, तो वो आपसे क्या सुनना चाहते हैं, आपके माइंड में डिसीजंस की डेफिनेशन क्या है, कौन से डिसीजन। तो प्लीज यूज एग्जांपल। देखिए, द लीडरशिप टीम हैज टेकन सर्टेन की डिसीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंपनी सच एज लिस्टिंग ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, ड्राइविंग ग्रोथ ऑर्गेनिकली एंड इनऑर्गेनिकली। अब ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो एग्जांपल्स है, ये मुझे कहाँ से मिले हैं? फ्रॉम द प्रीसीन केस स्टडी दिया हुआ, उसमें मैंने वही एग्जांपल्स लिख लिए। ठीक है, हाउएवर डिस्पाइट द वे द मैगजीन इंडस्ट्री इज चेंजिंग, अब कुछ चीजों में उन्होंने अच्छे डिसीजन लिए हैं, कुछ में नहीं लिए हैं, तो आपको यहाँ पे दोनों चीजें लिखनी है, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। तो हाउएवर डिस्पाइट द वे द मैगजीन इंडस्ट्री इज चेंजिंग, द लीडरशिप टीम हैज बीन स्लो टू रिस्पॉन्ड टू एरियाज सच एज, ये देखिए एग्जांपल्स। तो वन मैसेज फॉर यू टू क्रिएट प्रोफेशनल लेवल आंसर्स इज डू नॉट राइट आंसर्स विदाउट एग्जांपल्स। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है इनोवेशन, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, प्रोडक्ट रैशनलाइजेशन, इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। कोई भी एग्जांपल जो आपको लगे रेलेवेंट है रिलेटिंग टू मर्से एंड इट्स बिजनेस, वो यहाँ पे लिखना। सिमिलरली लेट्स टॉक अबाउट रिजल्ट। रिजल्ट मींस कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है। मर्से इज अमंग्स द टॉप 5 मैगजीन पब्लिशर्स विद इन डार्लैंड विद इन द ओवरऑल $8,000 मिलियन। यहाँ पे मैं एक वर्ड ऐड करता हूँ,
magazine industry. The overall revenue of the company is increased from itna to itna between 2001 and 5. You can do the fill in the blanks. Despite an overall increase in revenue, the percentage increase has been slowing down. पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ रहा है, कभी भी हर चीज पॉजिटिव नहीं होती. दिस इज लाइक अ कंपनी का रिपोर्ट कार्ड, दिस इज लाइक अ लीडरशिप का रिपोर्ट कार्ड. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, द ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ द कंपनी डिक्रीज फ्रॉम इतना टू इतना बिटवीन 1 एंड 2005. अब आप जितना ये लिखेंगे, जैसे मैं तो ये बार बार लिख रहा हूँ, डेली लिख रहा हूँ, तो मुझे याद हो गया है. 2001 में 178 मिलियन का प्रॉफिट था. कैन एनीवन टेल मी 2005 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो गया? Since you've read the case study and I'm assuming you may have written a lot of pointers, elaborated on them also. 175, yes, Vanshika, correct. तो कैसे याद होगा? लिख लिख के. So the operating profit of the company decreased from 178 million to 175 million between 2001 to 2005. However, the operating profits saw a very sharp decline during 2004 and 2005. This is primarily due to decrease in the revenue from printed magazines and overall increase in cost. तो ऐसे करके आप बॉलरिज परफॉर्मेंस एक्सेलेंस के डिफरेंट पैरामीटर्स को यू शुड वर्क ऑन इलैबोरेटिंग देम. इससे भी आपका बिजनेस पे कमांड आएगा. अब मैंने आपको एक चीज बोली थी स्टार्टिंग क्लास में, बार बार बोलता हूँ कि कोई भी पैराग्राफ 4-5 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए. देखो मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ. हाउ मेनी लाइन्स डज दिस पैराग्राफ है? 1 2 3 4 5 6. ये एक लेंदी पैराग्राफ है. इन्विजिलेटर इसको नहीं पढ़ेगा. एटलीस्ट आपको माइंड को अपने ऐसे ट्रेन करना पड़ेगा कि लेंदी पैराग्राफ होंगे तो इन्विजिलेटर नहीं पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा तो नंबर नहीं मिलेंगे. मान लो आपकी हैबिट है लिखने की लेंदी पैराग्राफ, लिख लो. मैंने भी लिख दिया. मैंने इसको एक एंटर किया और मैंने यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है इसमें मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हुए, मैंने उसको 2 डिफरेंट पैराग्राफ में डिवाइड कर दिया. कहानी खत्म. जो 6 लाइन थी, एक पैराग्राफ बन गया 2 लाइन का, एक पैराग्राफ बन गया 4 लाइन का. Everything has a solution. You just have to be aware कि there is a problem that needs to be solved. What is the problem that we're trying to solve? 6-6 7-7 10-10 लाइन के पैराग्राफ कोई नहीं पढ़ने वाला. आप भी नहीं पढ़ोगे अगर मैं आपको भेजूंगा तो देखिए यहाँ पे मैंने कैसे लिखा है. मर्से इज अ 60-year-old कंपनी इन द बिजनेस ऑफ मैगजीन पब्लिशिंग. कहाँ से आया? केस स्टडी. द कंपनी हैज 8 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मैगजीन विद अ टोटल ऑफ 300 magazines. Over the years, the demand for printed magazine has been declining, requiring the company to use data to analyze the changing trends and drive innovation to come up with new product. अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? Can anyone tell me सेकंड वाले पैराग्राफ में क्या प्रॉब्लम है from an invigilator perspective? Anyone? Read the paragraph and put your thoughts on the chat. Let's see if you can identify the problem from an invigilator perspective. Yes, Farhan, 175 was correct. पढ़िए पैराग्राफ. Over the year, the demand for printed magazine has been declining, requiring the company to use data to analyze the changing trends and drive innovation to come up with new products, new ways of providing the same product to ensure that the company is able to increase its revenue and profit. सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें क्या है? ये सेंटेंस खत्म ही नहीं हो रहा. आई एम जस्ट गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन. ऐसे आप लोग भी पॉइंट्स लिखते हो. शुरू किया, उसमें क्या कर रहे हैं? कॉमा लगाते जा रहे हैं, कॉमा एंड कॉमा एंड कॉमा एंड वो पूरा सेंटेंस बंद बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है. ये पॉइंट इन्विजिलेटर नहीं पढ़ेगा, उसे समझ ही नहीं आएगा मैं क्या कह रहा हूं. So over the years, the demand for printed magazine has been declining, requiring the company to use data to analyze the changing trends. ट्रेंड्स के बाद फुल स्टॉप. This will help the company to drive. Then follow up with the next point. Sentences have to logically end at some point in time. It just cannot go on and on and on and on. Nobody is going to read it, and even if they make an attempt to read it, इतने लंबे लंबे सेंटेंस का इसेंस ही नहीं समझ में आएगा, इसेंस नहीं समझ में आएगा तो नंबर नहीं मिलेंगे. तो आई एम ऑल्सो इंटेंशनली मेकिंग मिस्टेक्स टू शो यू जो आप अपने आंसर्स में लिख करते हैं. पैराग्राफ लेंदी है, एग्जाम्पल्स नहीं है, नंबर्स नहीं है, सेंटेंस ही नहीं खत्म हो रहा, एंड कॉमा एंड कॉमा एंड कॉमा, फुल स्टॉप भी तो अवेलेबल होता है. ठीक है, समझ आ गया क्या करना है और क्या नहीं करना है? ठीक है. So this is how all of you can reconstruct
or construct an answer relating to Baldrige performance excellence. If you have any further challenge, आप इस क्वेश्चन, इस पास पेपर के इस क्वेश्चन को भी रीड कर सकते हैं फॉर मोर क्लैरिटी, बट उसमें मिलेगा वही जो हमने यहाँ पे आंसर्स में लिखा है। ठीक है, बट कस्टमर्स वाला पॉइंट, वर्कफोर्स वाला पॉइंट, ऑपरेशंस को भी इलेबोरेट करके रख लेना। वर्कफोर्स मींस व्हाट? एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, तो लिख के रख लो। ठीक है, इज एवरीवन क्लियर? बॉलरिज परफॉर्मेंस एक्सेलेंस, डाउट्स, क्वेश्चंस? इसलिए बोला जाता है कि जितने पास पेपर के आप टिपिकल क्वेश्चंस करोगे उतना ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा, बिकॉज यू ट्राइड डिफरेंट सिचुएशंस। Since revenue and operating profit percentage of 2005 are given, can we calculate total operating cost and common cost somehow? Yeah, you should try whatever you want. SBL में there is no rule of thumb कि ये करना है ये नहीं करना है। ठीक है, क्लियर है आप सबको? तो प्लीज इसको जितना डेप्थ में जाएंगे, आप देखो अगर आप काउंट करना स्टार्ट करोगे ना, वी डन अबाउट 20-25 सिचुएशंस ऑलरेडी। 20-25 में से 2-3-4 क्वेश्चंस भी क्लिक कर गए, बल्ले बल्ले है। ठीक है जी, क्लियर है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स कंटिन्यू द डिस्कशन। ओके, ये जो मैंने आपको बोला था आज की क्लास में मैं आपको दे रहा हूँ, दीज आर योर जनरल पॉइंट्स। देखो हेडिंग क्या लिखा है, पॉजिटिव बेनिफिट एडवांटेजेस। इतने सारे आपके पास पॉइंटर्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं टू कंस्ट्रक्ट योर आंसर्स, ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। 25 पॉजिटिव्स मेरे पास मेरे सामने हैं, आंसर में यूज करो। जितने यूज करोगे उतना प्रैक्टिस होगा, जितना प्रैक्टिस होगा उतना मरसे पे कमांड आएगा, जितना कमांड आएगा उतना पेपर अच्छा होगा। Similarly, if you look at this list, there are negatives, challenges, disadvantages. There are about 13 negatives, challenges, and disadvantages you can add to this list. 25 plus 13, 38 पॉइंट्स की तो रिपोजिटरी मेरे पास पहले से है। अब ये लिस्ट भी अगर मैं सामने रखूं और मैं अपने क्वेश्चंस में एडवांटेज डिसएडवांटेजेस उसको मैप करना शुरू करूं, तो मेरे आंसर्स तो वैसे ही क्रिएट हो जाएंगे। बट ये लिस्ट पहले क्यों नहीं दी जाती? बिकॉज वी नीड टू डेवलप द एबिलिटी टू थिंक। बिजनेस समझो, क्वेश्चन समझ आएंगे, क्वेश्चन समझो, आंसर लिखना समझ में आएगा, आंसर लिखने का कंटेंट मिलेगा, स्ट्रक्चर करो तो प्रोफेशनल आंसर ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ठीक है, सो एवरीवन रेफर टू दिस लिस्ट ऑफ जर्नल पॉइंटर्स, एंड लाइक आई सेड दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव। आप इसको, आपको लगता है इसमें आप 25 की जगह 30 एडवांटेजेस कर सकते हैं, प्लीज डू इट। आपको लगता है 13 की जगह 23 डिसएडवांटेजेस कर सकते हैं, डू इट। दिस इज योर डॉक्यूमेंट टू प्ले विथ। क्लियर एवरीवन? सो आपके पास ये अब लिस्ट भी आ गई, 20-25 एनालिसिस भी आ गए, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स को हमने इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर ली जो जो पॉसिबल थे। अब कुछ कुछ फ्रेमवर्क्स इंप्लीमेंट नहीं हो पाएंगे, आप कहोगे इसमें प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कैसे इंप्लीमेंट होगा? वो तो वैसे भी एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, बट इसमें आंसर मैट्रिक्स कैसे इंप्लीमेंट होगा हमने करके देखा। अब इसमें बीसीजी कैसे होगा वो भी नहीं हो सकता, बिकॉज हमारे पास प्रोडक्ट लेवल इंफॉर्मेशन नहीं है। बट व्हेन आई मीट यू इन द सेशन टुमारो, ठीक है, आप, मैं आपको आज क्या कहते हैं, आई विल गेट यू अ केस स्टडी सेंट ऑन बियागो। बियागो वाज अ कैब एग्रीगेटर, उसमें बीसीजी का क्वेश्चन आया है। ठीक है, वो भी क्वेश्चन उसके बाद रिपीट नहीं हुआ, तो प्रॉब्ली उस क्वेश्चन को बेस लेके कैसे बीसीजी को कंस्ट्रक्ट करते हैं वो भी मैं आपको कल के सेशन में करवा दूंगा। तो मैक्सिमम फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट हो गए, मैक्सिमम क्वेश्चंस आ गए, मैक्सिमम पॉइंटर्स आ गए। अब इसको प्रैक्टिस कर करके कॉन्फिडेंस लाने के लिए टाइम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इज एवरीवन क्लियर? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट्स अप टू दिस पॉइंट इन टाइम? लेट्स क्विकली सी, चैट पे चलते हैं, लेट्स चेक। अर्नव, आयुषी, महक, सौम्या, फरहान, वंशिका। ओके चलिए, ओके, सो ये डॉक्यूमेंट आपको क्लास के बाद आ जाएगा, इट विल बी सेंड टू यू। सो ये डॉक्यूमेंट था जो विच आई वांटेड टू शेयर। सो दिस इज लाइक आई सेड, इफ आई जस्ट गो टू द टॉप, दिस इज वर्जन 4 ऑफ द केस एनालिसिस, विच मीन्स दिस इज डे 4। ठीक है, now let me just stop sharing this document for now. Okay, now I want to just quickly pull up the smartware का paper and I want to show you a few questions. Okay, so let me just share my screen. Let me know if it is visible to you.
Okay, can everyone see the screen? Chat पे quickly respond कर दीजिए if you can see my screen, yes or no. Okay, now let me just go to the top. This is the famous smartware paper which was June 2019, which means this is an old format paper. जब ACCA का जो स्किल लेवल प्रोफेशनल लेवल का SBL एग्जाम होता था, ये देखो क्या लिखा है, दिस वाज अ 4 आवर एग्जाम। 4 आवर एग्जाम में रीडिंग, प्लानिंग, रिफ्लेक्शन सब कुछ करना है, और देन फिर आपको 100 मार्क्स का पेपर करना है। अब लाइफ इजी क्यों हो गई है? क्योंकि आपको पेपर तो 10 दिन पहले आ जाता, तो रीडिंग आपने पहले कर लिया, एनालिसिस आपने पहले करके रख लिया। पहले आपके पास 7 to 8 क्वेश्चंस आते थे, 4 मेन टास्क, हर टास्क के 2 पार्ट्स, किसी का एक सब पार्ट। अब आपके पास 3 ही टास्क आते हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कम हो गए, एग्जाम टाइम भी कम हो गया, 4 से 3 घंटे, केस स्टडी भी 10 दिन पहले आ रही है, तो नाउ द पेपर हैज बिकम इजियर। ठीक है, तो दिस इज समथिंग यू विल हैव टू गिव योर सेल्फ कॉन्फिडेंस कि हाँ दिस इज डूएबल। ठीक है। ओके, नाउ स्मार्टवेयर इज अ पेपर जिसका नाम वैसे तो स्मार्टवेयर है, बट इसमें जितने क्वेश्चन थे दे वर ऑल वेरी वेरी टिपिकल, मतलब कुछ तो ऑब्वियसली रिपीट थे क्योंकि वो थीम्स चलती आ रही हैं, बट 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स ने देखे। ठीक है। ओके, सो लेट्स क्विकली लुक एट इट। सो देखो, पहला क्वेश्चन तो आपसे सिंपल सा क्या पूछ रहा है, एनालाइज द एनवायरनमेंट इन विच सॉफ्टवेयर ऑपरेट्स। सो दिस इज द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस जो आपको करना है, ये तो मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन है असेस द मेजर रिस्क। रिस्क तो ऑलमोस्ट हर पेपर में आता है, रिस्क भी आएगा, उसका इम्पैक्ट भी आएगा, उसका मिटिगेशन भी आएगा, तो दिस क्वेश्चन इज अबाउट 24 मार्क्स। एक लाइन आप सब लोग ध्यान रखें, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, प्रोफेशनल स्किल मार्क्स आर अवेलेबल फॉर इवैल्यूएशन स्किल्स बाय असेसिंग द आइडेंटिफाइड रिस्क एट स्मार्टफेयर ऑब्जेक्टिवली। हर क्वेश्चन के बाद ये स्किल है, इस स्किल का सिग्निफिकेंस है, सो यू हैव टू रीड द स्किल, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मुझे उसमें क्या करना है, एंड व्हाइल यू आर राइटिंग योर आंसर्स आपको वो डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं एग्जाम में देखो ए अच्छा एनवायरमेंट एनालिसिस करना है, बी मतलब रिस्क करना है, और ये प्रोफेशनल स्किल मार्क्स को तो पढ़ना ही भूल गए। पढ़ना भूल गए तो 4 नंबर कट मिलने से पहले कट गए। ठीक है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है जो टिपिकल क्वेश्चन था, एवरीवन रीड द क्वेश्चन। एनालाइज द कंपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथलैंड मार्केट to determine why smartware appears to be performing so well in this particular country compared to नोरिया। सब पढ़े और मुझे पढ़ के बताइए आपको इस क्वेश्चन से क्या समझ में आ रहा है, एंड वॉट एवर कम्स टू योर माइंड जस्ट डंप इट ऑन द चैट। एनालाइज करना है विच मीन्स आपको, एनालिसिस मीन्स रीजनिंग, है ना, क्यों ऐसा हो रहा है, सो एनालाइज मीन्स द क्यों। एनालाइज कंपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथलैंड। अब इस केस स्टडी में आप देखेंगे तो आपके पास 2-3 कंट्रीज का डेटा है, साउथलैंड एक कंट्री है, नोरिया एक कंट्री है। एनालाइज द कंपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथलैंड मार्केट टू डिटरमाइन, डिटरमाइन मतलब रीजन समझने हैं, कि स्मार्टफेयर साउथलैंड में क्यों अच्छा परफॉर्म कर रहा है एज कंपेयर टू नोरिया। प्रोफेशनल स्किल मार्क्स पढ़ लेते हैं। प्रोफेशनल स्किल मार्क्स आर अवेलेबल फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग एनालिसिस स्किल्स इन डिटरमिन स्मार्टवेयर स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथलैंड मार्केट। अब पूरा का पूरा क्वेश्चन किस पे फोकस है, एक कंट्री के एनालिसिस पे, कि उस कंट्री में ऐसा क्या है बिकॉज ऑफ विच आई एज अ कंपनी एम डूइंग वेल। Now, when you get this combination, country analysis, finding out reasons why this is doing better than the other country, like Yasha says, factors of Nori and Southland to be compared, factors for Porter's Diamond, correct। तो जब भी आप दो कंट्रीज को कंपेयर कर रहे हैं, जब भी आप एक कंट्री के यूएसपी को कंपेयर कर रहे हैं जिसकी वजह से कोई कंपनी अच्छा कर रही है, दैट इज एन इंडिकेशन ऑफ पोर्टर्स डायमंड। अब आप बोलोगे पोर्टर्स डायमंड तो तब करते हैं व्हेन यू आर ट्राइंग टू एंटर अ कंट्री, बिल्कुल, बट यहाँ पे वो ऑलरेडी अगर कंट्री में काम कर रहे हैं, और हमें कंट्री की यूएसपी समझनी है कि इंडिया में ऐसा क्या है जो हर कंपनी इंडिया आना चाह रही है फॉर देयर बिजनेस, चाइना में ऐसा क्या है जो हर कंपनी चाइना जाना चाह रही है फॉर देयर बिजनेस, दोज आर ऑल्सो हिंट्स ऑफ पोर्टर्स डायमंड।
तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सिर्फ 10 नंबर का है। चार फैक्टर, चार फैक्टर डिवाइडेड बाय 10, दो, 2.5 मार्क का एवरी फैक्टर है, 3 नंबर का मान लो। बट वो 10 नंबर कब आएंगे, जब मुझे ये तो समझ में आता है क्वेश्चन मेरे से पूछ क्या रहा है। तो कंट्री का एनालिसिस हो रहा है, कंट्री की यूएसपी बतानी है जिसकी वजह से आई एम डूइंग गुड बिजनेस। ठीक है, परफॉर्मिंग सो वेल इन दिस पर्टिकुलर कंट्री कंपेयर टू नॉर्वे। सो जब आपके पास ये कॉम्बिनेशन आएगा, दैट इज एन इंडिकेटर ऑफ पोर्टर्स डायमंड। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? आयुषी, इज द क्वेश्चन क्लियर? तो पहली बात तो ना, एग्जाम में आपके पास ऑप्शन नहीं है क्वेश्चन छोड़ने का। तो क्वेश्चन को तो टाइम लगा के इंटरप्रेट करके करना तो है ही, बिकॉज अगर आप कहेंगे जी मैंने तो 80 मार्क्स का पेपर किया एंड आई एम कॉन्फिडेंट टू गेट 50, यू आर रनिंग अ रिस्क। तो 100 मार्क्स का पेपर तो करना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आया, मैंने क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन को समझा, अब चलते हैं इसके एग्जिबिट में। तो लेट्स क्विकली गो टू द एग्जिबिट। एग्जिबिट आपके पास है, ये पेपर मैं आपको अभी क्लास की इमीडिएटली बाद भेजूंगा। ये देखिए, ये रहा 3 कंट्रीज का डेटा, नॉर्या, साउथलैंड, सेंट्रम। अब मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन भी मुझे समझ नहीं आया, मैंने पूरा दिमाग लगा लिया, मेरे क्वेश्चन समझ में नहीं आया। If don't use the Porter's diamond but still provide the same level of answer, will I lose marks? So Farhan, again yes you will, because अगर आप Porter's diamond लगाएंगे तो आप वो 4 हेडिंग्स दिखाएंगे, डिमांड कंडीशन, फैक्टर कंडीशंस, स्ट्रक्चर, स्ट्रेटेजी, राइवलरी, है ना, सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज। तो मार्क्स तो आपको नहीं लिखोगे ये हेडिंग तब भी मिलेंगे, बट इट विल बी सिग्निफिकेंटली लेसर, क्योंकि वो क्वेश्चन आपसे एक इंटेंट से पूछ रहे हैं। सो दे नीड टू सी दैट इंटेंट इन द क्वेश्चन। अब मान लीजिए लास्ट के 20 मिनट बचे हैं, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, कुछ लिखना है, छोड़ भी नहीं सकते, तो ऑब्वियसली आप लिखो जो आपको समझ में आए, स्टेप मार्किंग तो होगी। बट अगर मुझे 10 में से 8 मिलने थे विदाउट अ प्रॉपर यूसेज ऑफ द फ्रेमवर्क, दो मार्क्स कैन गो डाउन टू 4 और 5। तो मार्क्स तो मिले, बट कुछ मार्क्स आपने लूज कर दिए। अब आप कहेंगे सर इट इज बेटर देन नॉट गेटिंग अ जीरो। एब्सोल्युटली यस। ठीक है, बट अब क्योंकि मैंने क्वेश्चन पहले से देख रखा है तो मुझे एग्जाम पे स्ट्रगल नहीं होना चाहिए। ओके, लेट्स से मुझे क्वेश्चन देख के समझ नहीं आया, अभी भी नहीं समझ में आया कि क्या करना है। ये डेटा तो देख लो, पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एवरेज एनुअल अर्निंग, सेंट्रल बैंक डिपॉजिट रेट, इन्फ्लेशन, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम। नीचे आपके पास डोमिनेंट सेक्टर की इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं। ये सारी चीजें क्या इंडिकेट कर रही हैं? पॉपुलेशन क्या इंडिकेट करेगी? कौन से फ्रेमवर्क में पॉपुलेशन यूज होता है? कहीं पे भी नहीं होता। और पॉपुलेशन अगर यूज होगा तो उसमें आपको वो इतना डेप्थ ऑफ डेटा देंगे तो ये क्या इंडिकेट करेगा? डिमांड कंडीशंस। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या इंडिकेट करेगा? सप्लाई कंडीशंस। एनुअल अर्निंग्स क्या इंडिकेट करेंगी? डिमांड कंडीशन। सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट क्या इंडिकेट करेगा? सपोर्टिंग एंड रिलेटिंग इंडस्ट्री। इन्फ्लेशन रेट क्या डिपिक्ट करेगा? डिमांड कंडीशंस। सेक्टर्स क्या डिपिक्ट करेंगे? सपोर्टिंग एंड रिलेटिंग इंडस्ट्रीज। तो अगर मैंने वो क्वेश्चन पढ़ा, नहीं समझ में आया, मैंने उसका एग्जिबिट में आके देखा, तो एग्जिबिट भी आपको चीख चीख के यहाँ से यही बता रहा है, दिस इज अ पोर्टर्स डायमंड क्वेश्चन, बिकॉज यू ट्राइंग टू कंपेयर 3 डिफरेंट कंट्रीज। पोर्टर 5 फोर्सेज में तो नहीं करते, पेस्टल में भी कंट्रीज को कंपेयर नहीं करते। कंट्रीज का कंपैरिजन कहाँ आ सकता है? सिर्फ पोर्टर्स डायमंड में आ सकता है। और उसके बाद भी ये एलिमेंट, दीज पैरामीटर्स हियर, ये पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, दिस इज गोइंग टू टेल यू पोर्टर्स डायमंड। तब आपको क्या करना है? सबसे पहले आप इन फैक्टर्स में से देखो कौन कौन से फैक्टर डिमांड कंडीशन में यूज हो सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर फैक्टर कंडीशन में यूज हो सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्री में हो सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर स्ट्रक्चर, स्ट्रेटेजी, राइवलरी में हो सकते हैं। वो फैक्टर में जाओ, उस फैक्टर को एक्सप्लेन करो। अब तो मैंने आपको पैराग्राफ में दे दिया क्या क्या पैराग्राफ लिखने हैं। पैराग्राफ नंबर 1 विल बी अबाउट द फैक्टर, paragraph number 2 will be why is that factor favorable, unfavorable, paragraph 3 is impact on the company। तो स्ट्रक्चर आपके पास है, डेटा आपके पास या एग्जिबिट में है। दिस इज हाउ अ पोर्टर्स डायमंड क्वेश्चन हैज टू बी इन्फर्ड, इंटरप्रेटेड एंड अटेम्प्टेड। चैट पे चलते हैं, चैट पे क्या है? डिमांड, यस से विल टाइप ऑफ गवर्नमेंट कम हियर, टाइप ऑफ गवर्नमेंट बोले तो कोalition गवर्नमेंट से आयुषी क्या चीज डिटरमाइन होती है?
What will a coalition government indicate? कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है? कोलिशन गवर्नमेंट मतलब कि जब आपके पास चार पांच मिली जुली पार्टीज मिलके सरकार बना रही जुगाड़बाजी से, व्हाट डज दैट टेल यू? द गवर्नमेंट विल नॉट बी स्टेबल. व्हेन द गवर्नमेंट इज नॉट स्टेबल, व्हाट विल दैट टेल यू? कि पॉलिसीज आर नॉट स्टेबल. उसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं? उसको हम लोग रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्री में भी कर सकते हैं, स्ट्रक्चर स्ट्रेटेजी राइवलरी में भी कर सकते हैं, उसका इम्पैक्ट डिमांड कंडीशन में भी आ सकता है, उसका इम्पैक्ट फैक्टर कंडीशन में भी आ सकता है. सो पॉलिटिकल फैक्टर इज वन एस्पेक्ट जो सब जगह इंपैक्ट करता है. पूरी कंट्री को क्या चीज है जो कॉमनली इंपैक्ट करती है? गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की पॉलिसीज. तो कोalition गवर्नमेंट का यूज कहाँ पे आएगा? वहां पे आएगा. अब यहाँ पे देखिए साउथ एंड में लिखा है फ्री मार्केट इकोनॉमी. फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब क्या? कंपनीज कैन कम एंड डू बिजनेस. तो विच मीन्स कॉम्पिटिटिव राइवलरी ज्यादा होगी. डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट का मतलब क्या है? गवर्नमेंट विल बी मोर स्टेबल. स्टेबल गवर्नमेंट होगी तो डिमांड कंडीशन पॉजिटिव होगी, स्टेबल गवर्नमेंट होगी तो फैक्टर पे पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, स्टेबल गवर्नमेंट होगा तो स्ट्रक्चर स्ट्रेटेजी राइवलरी पे पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा. दैट इज हाउ यू यूज इंफॉर्मेशन. इज एवरीवन क्लियर? दैट इज व्हाई द स्मार्टवेयर पेपर इज अ मस्ट फॉर एवरीवन. टाइम नहीं है तो प्लीज रीड इट, बट रीड इट थरली. एक एक एग्जिबिट को, एक एक क्वेश्चन को पहले समझो, थॉट्स को स्क्रिबल करो, देन आंसर्स को पढ़ो. ये नहीं क्वेश्चन पढ़े और आंसर पढ़े हाँ मैं कर लूंगा, नहीं ऐसे नहीं होगा. लेट्स नॉट ब्लफ. ठीक है. ओके. इज एवरीवन क्लियर ऑन पोर्टस डायमंड? कैसे करना है स्ट्रक्चर मैंने आपको इस डॉक्यूमेंट में दे दिया. मर्से के क्वेश्चन आपके सामने है. मैं आपको ये भी बता दूंगा, मतलब ये पेपर भी मैं आपको अभी क्लास के बाद भेज दूंगा. बट करना आपको है. डोंट कम एंड टेल मी आई हैव रेड इट. अगर आप हर क्वेश्चन सिर्फ रीड कर रहे हैं पास पेपर पे, दैट इज नॉट गोइंग टू गिव यू कॉन्फिडेंस. आई एम पुटिंग दिस ऑन अ रिकॉर्डेड सेशन. अगर इतना आसान होता तो हर पेपर का 100% रिजल्ट होता. ठीक है. क्लियर. चलिए एक और क्वेश्चन आई वांटेड टू कवर बिफोर वी रैप अप, अगेन फ्रॉम द स्मार्टवेयर पेपर ओनली. सो लेट्स जस्ट गो बैक टू द क्वेश्चंस. ओके. तो टास्क 2 हमने देख लिया. ठीक है. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन था, मैं सिर्फ इस क्वेश्चन को आपको पढ़ के सुना रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे चैलेंजिंग नहीं लगता, बट आई स्टिल वांटेड टू जस्ट गो थ्रू दिस. इट सेज इवैल्यूएट द स्ट्रेटेजिक एंड एथिकल इम्प्लीकेशंस. अब मुझे सिर्फ आप ये बताइए कि इन तीन वर्ड्स का मीनिंग क्या है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्ट्रैटेजिक implications? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एथिकल implications? एवरीवन ऑन द चैट. हाँ जी. क्विकली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजिक implication? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एथिकल implication? अब ये मत बोलना सर ये नहीं आता, दिस इज इंग्लिश, इसमें एसबीएल का कुछ नहीं है, इसमें ईसीसी का भी कुछ नहीं है. क्विकली ऑन द चैट. ओके. व्हाट इज श्रुति सिंह? कुछ तो श्रुति ने लिखा था. अच्छा श्रुति, मी टायर्ड और यू टायर्ड? आई एम अज्यूमिंग यू. है ना? हाँ. अस अस ओके कोई बात नहीं, बस ये दो क्वेश्चंस करके देन वी आर रैपिंग अप, आई नो. चलो लेट्स सी क्या तो थॉट्स आए रिलेटिंग टू स्ट्रेटेजिक implications. ओके. Meg says effect on business. How will the core strategic goals be affected or hindered? Correct. तो कोई भी चीज, कोई भी कंपनी डिसीजन लेगी तो उससे कंपनी की स्ट्रेटेजी पे क्या इंपैक्ट होगा? दैट इज स्ट्रेटेजिक implications. एथिकल implication मतलब जब भी हम कोई डिसीजंस लेते हैं, why will it be ethical, why will it be unethical? Reasons. सब क्वेश्चंस को पढ़ो. Evaluate the strategic and ethical implications to smartware. किस चीज का? of the planned shop closures in Noria and withdrawal from Centrum. स्मार्टवेयर कंपनी तीन कंट्रीज में है, नोरिया में है, सेंट्रम में है, साउथलैंड में है. वो कह रहे हैं हम दो डिसीजन ले रहे हैं. नोरिया में शॉप्स को बंद करेंगे, सेंट्रम से बाहर निकलेंगे, कंट्री छोड़ेंगे. ये दोनों डिसीजंस का मेरे ऊपर, मेरी स्ट्रैटेजी के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा? स्ट्रैटेजिक implications.
और इनको करने में मुझे क्या क्या एथिकल चीजें माइंड में रखनी है कि मैं कुछ भी अनएथिकल ना करूं। दोज आर द टू थिंग्स दैट दे आस्किंग यू फ्रॉम अ क्वेश्चन पर्सपेक्टिव। ये चीज भी मैंने आपको मरसे में इंप्लीमेंट कर दी। अगर कल को मरसे अपने ऑफिस को बंद करे, मैगजीन्स को बंद करे, अपने लोगों को निकाले, उसके स्ट्रेटेजिक एंड एथिकल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। सेम क्वेश्चन, सेम थॉट प्रोसेस अप्लाइड टू मरसे। पॉइंट्स भी आपके पास हैं, ये क्वेश्चन भी आपके पास है, जस्ट बिल्ड ऑन इट। सबको क्वेश्चन समझ में आ गया? एथिकल एंड स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन, और एक बार पॉइंट देखोगे फिर तो वैसे ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए, लास्ट क्वेश्चन एंड लास्ट टॉपिक फॉर द डे, अगेन फ्रॉम स्मार्टवेयर ओनली। लेट्स गो टू दिस क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। इवेल्युएट द मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स एनपीवी एनालिसिस। तो ये एनपीवी एनालिसिस किसने बनाया है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने। तो यहीं पे आपको पता चल जाए कि बॉस ये तो गलत ही होगा, ये तो बेकार ही होगा। बट आप रैंडमली तो बेकार नहीं बोल सकते। आपको क्या चाहिए? रीजंस। तो रीड द क्वेश्चन। इवैल्यूएट द मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स एनपीवी एनालिसिस दैट सपोर्ट्स सीडीएमएस इन्वेस्टमेंट। ये लोग कंपनी में एक कस्टमर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर लगाना चाह रहे हैं। उस सॉफ्टवेयर को लगाने की इन्होंने एक एनपीवी कैलकुलेशन करी है। वो आपसे सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि एनपीवी एनालिसिस में क्या गलत है और क्यों। Let's read the question one more time. Evaluate the marketing department's NPV analysis that supports the CDMS investment, questioning any underlying assumptions made. अब कैसे पता चलेगा, उसके लिए चलते हैं एग्जिबिट पे। ये रहा आपका एग्जिबिट। ऊपर देखो लिखा है कस्टमर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। बट ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल किसने करा है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने। अब वो एनालिसिस आपको लाइन बाय लाइन दे रहे हैं। इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी? 38 मिलियन, 0 पीरियड में। ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है? हर साल 2 मिलियन। कंट्रीब्यूशन हर साल कितनी है? 22 मिलियन। इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन कितना है? 3 मिलियन। इनके लिए जो भी नोट्स हैं वो भी आपको नीचे दे रखे हैं। कॉर्पोरेट टैक्स कितना लगेगा? 30। डिस्काउंट फैक्टर कितना है? 10%। सब कुछ दिया हुआ है। हमें क्या करना है? हमें लाइन बाय लाइन गलती ढूंढनी है कि ये सही क्यों नहीं है। सबसे पहली चीज, रैंडमली उठा रहा हूं, ऑपरेटिंग कॉस्ट किसी भी प्रोजेक्ट को करने में हर साल सेम कॉस्ट तो नहीं आ सकती। इनिशियली ज्यादा होती है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम होती है। इन्होंने क्या करा है, हर साल 2 मिलियन लिए। आप क्या क्वेश्चन पूछेंगे? द पर्सन who's created the analysis has assumed a cost of 2 million as operating cost every year. This doesn't seem correct because when you start the project initially the cost could be higher and later the cost should be lower. बस इतना ही करना है। हर लाइन आइटम को चैलेंज करना है विद अ रीजन। अब देखिए, एडिशनल कंट्रीब्यूशन हर साल 22 मिलियन। प्रोजेक्ट कभी भी स्टार्ट होता है तो इनिशियली रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट कम होता है, बाद में बढ़ता है। सेम लॉजिक आपको लाइन 2 में लगाना है कि दे अज्यूम 22 मिलियन एवरी ईयर। इनिशियली कंट्रीब्यूशन विल बी लोअर बिकॉज कॉस्ट विल बी हायर, outflow will be higher. Gradually the contribution should increase and it should not be the same amount every year. तो चैलेंज हो गया ये assumption। अब इन्होंने यहाँ यूज करा डिस्काउंट फैक्टर ऑफ 10%। व्हाट इज द बेसिस? आपने कॉस्ट ऑफ डेट लिया है, आपने कॉस्ट ऑफ इक्विटी लिया है, आपने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिया, क्या लिया है? अगर 8 लेंगे तो एनपीवी चेंज हो जाएगी, 12 लेंगे तो एनपीवी चेंज हो जाएगी। अगेन क्वेश्चन, कॉर्पोरेट टैक्स एवरी ईयर 30%, क्यों? कॉर्पोरेट टैक्स चेंज भी तो हो सकता है। अब वो होगा नहीं होगा वो मुझे नहीं पता, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट व्हाट इफ कॉर्पोरेट टैक्स चेंजेस, आपकी कैलकुलेशन विल चेंज। ठीक है। सो एनपीवी का क्वेश्चन इज नॉट टू टेस्ट योर एनपीवी डूइंग कैपेबिलिटी, इट इज ओनली टू टेस्ट वेदर यू आर एबल टू डू इट इन द राइट मैनर और नॉट। ठीक है, सबको समझ में आ गया? क्लियर? अब देखिए, कोई भी आप बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं, आप लोग में से कुछ तो वर्किंग एक्सपीरियंस ले रहे हैं, कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पढ़ा हुआ है। कभी भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है, क्या आप 100% कॉस्ट अपफ्रंट पे कर देते हैं जैसे इन्होंने 38 मिलियन पे करा है? कभी भी नहीं करते। आप कुछ अमाउंट अपफ्रंट पे करते हो, बाकी अमाउंट आप स्टैगर करके पे करते हो।
आज आप किसी को भी अपफ्रंट पूरी कॉस्ट दे दोगे, व्हाट इफ द कंसल्टेंट डज नॉट डिलीवर द प्रोजेक्ट टू यू, आपका पैसा तो हो गया ना खराब, राइट? सो 38 million शुड नॉट मीन पीरियड जीरो, सम पार्ट इन पीरियड जीरो, और धीरे धीरे करके यू विल स्टैगर इट एंड मूव इट टू द 5 year पीरियड। तो ऐसे करके लाइन बाय लाइन यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू चैलेंज एंड यू हैव टू गिव द रीजन फॉर योर चैलेंज। 10-12 नंबर का क्वेश्चन है, 5-6 लाइन बनेंगी, एवरी लाइन कुड गिव यू 1 or 2 marks, दैट इज हाउ यू कंस्ट्रक्ट द आंसर रिलेटिंग टू एन एनपीवी एनालिसिस। ये 2 बार आ चुका है, एक स्मार्टवेयर में, एक और पेपर में। इज एवरीवन क्लियर ऑन दिस? कैसे इसको अप्रोच करना है? इज इग्नोर्ड इन्फ्लेशन वैलिड ईयर? यस यस करेक्ट, आप लिखो कि अगर इन्फ्लेशन होगा तो भी ये सारी चीजें चेंज होगी, रीजन ही तो लाना है। व्हाट इज एसबीएल? योर रीजनिंग एबिलिटी, सो गेट योर रीजनिंग एबिलिटी। Normally, interest payments are not included in NPV calculation but adjusted during discounting using WACC, तो लिख दो वहां पे। आपको तो आता है एनपीवी कैलकुलेट करना, वही तो आपको दिखाना है। यू आर द पीपल हु कैन डू इट राइट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट विल डू इट रॉन्ग। Now you can't just say you are a bunch of idiots to the marketing department। आप कहोगे नहीं नहीं, इंटेंट वाज राइट, बट ये आपने गलत किया है क्यों, ये आपने गलत किया है क्यों, ये आप ऐसे कर सकते थे क्यों, बस रीजन लिखते जाओ, योर आंसर विल गेट क्रिएटेड। ठीक है, इज एवरीवन क्लियर ऑन दिस? एनपीवी को कैसे अप्रोच करना है? इसलिए बार बार एक ही चीज, स्मार्टवेयर बाय फार इज अ पेपर दैट यू शुड डेफिनेटली गेट योर हैंड्स अराउंड। और कोई पेपर करो मत करो, स्मार्टवेयर जरूर करो। एवरी क्वेश्चन इज टिपिकल बिकॉज एवरी क्वेश्चन इज टेस्टिंग योर रीजनिंग एबिलिटी। ठीक है, ओके, एनीवन एल्स, एनी अदर क्वेश्चंस बिफोर वी रैप अप? Okay, while you think about it, I'll just do one quick thing. I will stop sharing my screen and I will share the paper on the chat so that all of you have it readily available. Just give me 1 second. So let's use this time to probably do that. Okay, Muskan, if you're still there, if you want to probably have a general conversation, you can do that. I'm just taking this time to send the papers to the students.